Okay, so I hope everyone knows about arrays. So one array is sorted, though we haven't discussed about the sorting. Sorting means arranged in the increasing and decreasing order. That's what sorting means. And sorting is, let's say one array is given to you and there are 10 numbers. But one of the number is occurring more than n by 2 times. One of the number is occurring one and more than n by 2 times. So you need to tell me the most optimized way of finding that number. One of the number is occurring. So this array is sorted. By sorted, we mean to say that the array is like this: 1, 2, 3, 4, 5. This is sorted in the increasing order. And there is an array for which 10 numbers are given. Now my question to you is, you need to find that number in the most optimized way. How will you do this? The simplest solution is basically to run a counter, I guess, Okay, and keep track of make another array which can keep track of the numbers, okay, and then you keep a counter and check which number is occurring the highest number of times and return it. okay. So you know a bit about the complexity, Manas? Yes. Okay. So what do you think? What will be the time complexity for that? I think it's one you copy and again you keep. It should be for nested for loops. N square, I guess. Right, and there will be some extra space also if I'm right, because you're taking extra space, right? Yeah. So that will be on or what? Yeah, the number of the size of the array. Okay. Yeah, so this is one of the solutions. What Manas is saying, he will run two loops and he will try to find out which number is occurring how many number of times. Is it so? Is that's what you were trying to say, Manas? Yeah. But I couldn't understand why you are taking extra space. Uh, okay. Yes. So I they I thought we could copy it in another array to store the number of times each, but again nested for loop, so we don't need oh, another. okay. So To keep then let's say you there are some numbers like this 1, 2, 3, 1, 2, 3. So what will you store in another array? the number of times each number occurs. That was what I Okay. was thinking. So What do you think? What how we should store in another array? So this yeah, is a array. How should we store? uh, again, like, do we know that the number is fixed? Like we know it's going to occur n by 2 times only. Yes, the number is occurring more than n by 2 times. Acha, more than n by 2. So that this logic won't work then. Only O n square logic will work properly, I think. So you don't need extra space. That's what you're saying, or Yeah, only I think the normal nested for loop should work. and how will you find out which element is the one for which is occurring for the most number of times? By So most number of times and more than n by 2. so you first get the number depending on the index, then in another for loop you keep track of the number of times it actually appears Okay. in the array. So and if the counter is higher than the last counter, you can return it directly. If Okay. it's more than n by 2. Okay. Okay. Yeah, this is fine. We can run two for loops and we Sir, I can think uh, we can run two uh, for loops. Just one second. yes, And if we will have one max count outside it, and this max count will keep on updating. I mean, if it is greater than the previous one, then you will just update it. And if this max count is greater than n by 2, then you will just return it. By return it, you just return the index. Yeah, so it can be done in on square times. Yes. But I want some better solution. Okay.
Sir, from a sky operation, we can do that, I think. I'm surprised to know this, but how you will do the ASCII operation for this? Uh, cause numbers also have the ASCII values. Okay. So we will create arrays from 0 to 256, and how If much the number time the is if the number is 1 crore, then what will be the ASCII value for that? okay, but you said it is 1 to 10. And 1 to 10 are the 10. There are 10 numbers, Oh, okay. but that number could be anything. 1 lakh. So okay, let's assume that there are 10 numbers only. Then what you're saying, what we will do? Let's assume that. Okay, if they are 1 to 10, Hmm. then we will increase the counter, sorry, increase the sky value, how much the index number is occurred. Okay. So we can increase the So number. let's say there is one. So you are creating another array, right? Yes, And what you are storing in another array? 0 to 256 indexes, or I think it should not, like 10 numbers would be okay. But 0 to 256 to carry the indexes. See, I'm not. See, why I'm discussing it. मुझे ये समझ नहीं आ रहा आप ASCII वैल्यू क्यों यूज कर रहे हो? ASCII वैल्यू तो वहाँ यूज की जाती है जहाँ कैरेक्टर्स होते हैं. Why do you need ASCII values here? If you need the indexing, then you can just say ना कि अगर 1 नंबर पर है तो मैं array 1 में स्टोर कर लूंगा, 2 नंबर पर है तो मैं array 2 में स्टोर कर लूंगा. नहीं कर सकते ऐसे? Sir, is it sorted array? Yeah, it is sorted. So we can perform few checks. Okay, help me out in that. So I don't know I'm right or not. As it is sorted, and if any number is occurring more than one time, so there must be a sequence of the same numbers, right? So suppose take consider a input 1 1 1 1 1 and then 2 2 2. Here Like this? How many times 1? 1 2 3 4 5 5 times 1 and 2 times 3 times 2. So this can be our test case. Yes. Means here one is occurring more than half time, Yeah. and there can be another test case for the sorted array. No, Let's there. take 10 numbers. Let me add 3 4 also. Okay. No, take that 10 numbers. Yeah, so we can compare the first and the mid, and if it is equal, then Hmm. yes, that number is occurring more than one time. First and mid. Mid is what? This thing. Because as it is occurring more than n by 2 times, it should be appear in n by middle of the position, right? Okay, so let's say this is the case. So what if the middle one and to the last are same? Yeah. Yeah. So that's what I'm telling him. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I hope you can see my screen. Yeah. So now what will you do? I have a better solution. Better. Okay. Okay, Sir, so say we have these numbers only, and we can actually store the previous one in a variable. So Previous one in the variable. Okay. say we start from one and we make store one in a variable, and in the next iteration we check if the current one is similar to the last one. Okay. So we keep on iterating and keep on increasing the counter, and every So you time, have count also. yeah. Okay. So every time the number changes, Yeah. we set the counter back to 0. Okay. So after we go through two, say 3, 4, 5 times, the counter will keep on increasing because the number is the same as the previous one. Okay. Then. So as soon as we hit the counter, say 5 or 6 times, we can return the previous number directly. Like this is the number that has occurred like 5 or 6 times, and it's Yeah. only in one for loop. Yeah. So I like the process. I like the. Uh, let's take the example. So this is a very good thing. Yeah. Thanks, Manas. Okay. So these are the numbers. Okay.
So what Manas is saying, we will just run the one for loop, and we will have one previous also, one previous variable. So what we will going to do here is, so we will assign previous is equal to array I, and if this is what you will do, like if previous is equal to array I, Yeah. then you will just update the counter. Yes. Else previous will be assigned to array I and counter will be assigned to 0. Yes. This is what is Manas is trying to say. So I think this can solve the problem, right? Let's say previous, let's say we are at here. So 2 is assigned here. Now 2 is again coming here. So count will be increased to 2. Now count is increased to 3, 4, 5, 6. Now we will return from here and say, okay, 2 is the number. Right? Everyone clear with this? Anybody having any doubt? And tell me the time complexity also for this. Time should be O of n only, I guess. Yes, time complexity will be O of n. But anybody having any doubt in this? Especially the new ones, Madhvi, Joy, Pooja. No, it's clear. No. Yes, is it clear to everyone or not? Yes. So this is the one of the ways, but tell me the more optimized one. Divide the array into two. Whatever the value is, which is whatever the number is there, which is there more than like it is more than n by 2 times, right? So in the center, it is most probable that the number will be there in the center, Okay. and from there um, we can have the same procedure probably. So what will be the time complexity for that? Less than n. So one thing you need to remember, I am saying that it is certain that one number is occurring more than n by 2 times. It is certain. I am giving you this condition. Hello. But if it's occurring more than n by 2 times, it should be there at the center only, right? Yes. So what do you think? What will be the time complexity to find that out? Order of 1. The for loop. Yeah. Okay. Now I think the answer is looking good. Sorry, Prashant, I cannot hear you. I mean, some voice is coming like alien type of voice. Yeah, actually, I thought about that, but why shouldn't I tell that order of 1 complexity? I don't know. Prashant, if you can type, then it will be better. Actually, I think he is having connection problems. Yeah, that's understandable. So what we are saying is, let's say the size of the array is 10, just divide it by 2 and return that element. That is, just write the code that return array. Let's say I'm representing it by A. What is this? Size by 2. Yeah, this also works. Yeah. Yeah, this is solved or not? Yes. Order of 1. Anybody having any doubt, please let me know. No, no. So this is the best way. Yeah. So this is how you need to think. Let me tell you how the solution occurs, how to find the solutions for such problems. I will suggest you to write as many test cases as possible. See, write this also. See, again, 3 is coming in the middle. See, in the example, I didn't give you any test cases because you might have guessed by that. So whenever someone is giving you such problems, try to write several test cases and then see whether you are able to find any what we say, any pattern or something, right? So this is how we can do it in O1, most optimized way. I hope everybody will be able to give the correct answer in the first go. Yes. Okay, let's come to stack. Now when we know about arrays and linked list, then understand that you know about almost all data structures. All the other data structures will be created using arrays or linked list only. Okay, there will not be any other data structure.
So that's why you need to be extremely strong in case of what? Arrays and linked list. Now stack is what? Stack is a kind of data structure. If you know about English word stack, it means that something which is going inside it. Last in, first out. Yeah, last in first out, something which is going inside it at first. I mean, जो सबसे पहले जा रहा है वो सबसे बाद में आएगा. So kind of like you remember tables, मतलब कभी शादी वगैरह में जाते हैं तो प्लेट्स रखी होती हैं ऐसे, है ना, प्लेट्स ऐसे रखी होती हैं. तो ये वाली प्लेट तो कोई निकालता नहीं है, यही वाली निकालता है. ऐसी ऐसी पढ़ने, जैसे पढ़ाई करनी है तो आपकी जो बुक सबसे नीचे है वो कोई नहीं पढ़ेगा. तो इसलिए डेटा स्ट्रक्चर की बुक सबसे ऊपर रखना. यहाँ पे रखिए आपकी, यहाँ पे आपकी बुक रखी है मशीन लर्निंग की, तो ये कभी 10 साल बाद पढ़ेंगे. ऐसी डेटा स्ट्रक्चर की बुक आपने लास्ट रख दी तो वो कोई नहीं पढ़ेगा, और आपने सबसे ऊपर रख दी कोई और, तो ये होता है. तो एनीवेज, सो दिस इज द वे, दिस इज द स्टैक. या और भी एग्जांपल ले सकते हैं इसके. पार्किंग लॉट कभी सुनो, शादी, स्पेशली अगेन शादी वगैरह मैरिज वगैरह में काफी होता है. कार्स खड़ी कर देते हैं कहीं पे भी, फिर जगह ही नहीं बचती बाहर निकालने की. तो आपकी कार्स खड़ी हैं, तो जो सबसे लास्ट में गई है वही सबसे पहले बाहर निकल के आएगी. So this is also one of the examples of stack. Right? Everybody able to understand what is stack? इसको लीफो बोलते हैं. थोड़ा सा, यस सर, लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो. हाँ, थोड़ा सा कूल भी दिखता है, मतलब आप बोल दो जैसे लीफो तो लग जाएगा अच्छा जी पड़ता है. तो लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट. फर्स्ट आउट. Why? Because जो सबसे बाद में डाला वो सबसे पहले आएगा बाहर. ये है इसका कॉन्सेप्ट. तो दिस इज ऑल अबाउट दी स्टैक. यही है कॉन्सेप्ट स्टैक का. जैसे स्टैक है, देयर आर टू वेज टू इम्प्लीमेंट इट. वन ऑफ द वेज इज यूजिंग एरेज, है ना, एरेज से. दूसरा है लिंक्ड लिस्ट. दो तरीके हैं इम्प्लीमेंट करने के. अब कौन सा सही है कौन सा गलत, ये तो आप ही डिसाइड करोगे जब इम्प्लीमेंट कर लेगा. मैंने चेक करा, आप सब ये करे नहीं है क्वेश्चंस. कोई रीजन है क्या उसका? वीडियोस अच्छी नहीं है सर लिंक लिस्ट पे फोकस कर रहे थे अभी. सर पहुंच नहीं पाए अभी तक. पहुंचो यार, कैसे होगा? थोड़ा तो मतलब बेसिक देख के आओ थोड़ा सा. जब लेक्चर्स हो रहे हैं तो क्या करें, स्लो कर देंगे लेक्चर्स को? व्हाट्स योर सजेशन? असाइनमेंट सर ज्यादा हो जा रहे हैं, तो क्या सर सर कुछ करने में टाइम. लेकिन के रिवर्स लिस्ट वाला अभी थोड़ी ना करना था यार, थोड़े बाद में करना था ना. ये तो अभी मत. Sir, actually, we don't know where to stop. Means it happens to me a lot. I या just trying. तो इसके लिए मैंने काफी कुछ करा था वर्क, लेकिन शायद ये अभी भी काम नहीं करा. वेयर टू स्टॉप, तो ये रहा. इसमें बोनस जो लिखा है ना, इससे पहले स्टॉप कर जाना, ओके सर. है ना. ये ये स्टॉप करना है सर. किस में? इसी में बोनस जैसे ही पढ़ने में आए उसको वहां पे स्टॉप करना है. हाँ, स्टॉप कर देना. लेकिन ये होता है ना, देखिए बोनस वाला जो क्वेश्चन है इसको आप पढ़िए बस. ये होने में टाइम लगेगा, ये है ना. वाई ये टाइम लगेगा? क्योंकि सोचना पड़ता है इन सब में. ये ऐसे नहीं होगा कि आज आपने उठा लिया चलिए हो गया आज ही. लेकिन बात ये है कि अगर आप स्टैक्स नहीं करेंगे ना तो थोड़ा लेक्चर्स में इशू रहेगा, क्योंकि मुझे पता नहीं चलेगा आपकी मिस्टेक कहाँ पे हो रही है. अब मैं आपसे पूछूं कि स्टैक को लिंक्ड लिस्ट से इंप्लीमेंट करूं या एरे से, क्या आंसर है इसका? दोनों से कर सकते हैं. कर तो सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू में कर रहे हैं तो आप किससे करोगे? Sir, it Linked depends list. upon application. हाँ, तो बताओ यार कुछ एग्जांपल कैसे करें. So if we want to perform a lot of insertions and नहीं, deletions, पहले आप मुझे बता दो कि एरे को आप सपोर्ट कर रहे हो या लिंक लिस्ट को, या दोनों को? दोनों. sir, दोनों अच्छा. को means अच्छा, ठीक है, ओके. actually it depends upon application, right? So when there are lot of insertions and deletions, then we should go for linked list. When there is सॉरी, a lot. वेट. Okay. इंसर्शन एंड डिलीशन यहाँ लिख दूं मैं, है ना. ये मलर ने बोला नाम भी लिख देते हैं जिससे अगर गलती हुई तो मेरे पे आए. हाँ, गलती.
क्योंकि आप बोल भी रहे हो ना बड़ी जेनरिक तरीके से, तो इसलिए नहीं, I इंसर्शन। think for insertion and deletion we should keep it in arrays because हमको हाँ पता है कि स्टार्टिंग में ऐड करने, अच्छा बाकी को हम लोग को शिफ्ट भी करना पड़ेगा। हाँ सब लिंक लिस्ट, हाँ ठीक है ठीक है। and यार when मेरे we को, मैं जॉय है, आई वाज हैप्पी आप एरे को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ये क्या, तीर चलने से पहले ही आपने गिरा दिया उसे। कोई है एरे वाला? यस सर। तो हाँ भाई बताओ, एरे कभी यूज, इंसर्शन डिलीशन में तो लिंक लिस्ट को यूज करेंगे। सर तो लेकिन इंसर्शन और डिलीशन जो भी होगा स्टैक के अगर प्रोस्पेक्टिव से देखें तो हमेशा लास्ट इंडेक्स पे ही होने वाला है, तो हाँ, शिफ्टिंग का तो बात ही नहीं क्या आने वाला आपने इम्प्लीमेंट करा है क्या? यस सर, मतलब उसको रेपल पे नहीं डाला लेकिन कर लिया है सर, अच्छा अच्छा, और किसी ने ऑफलाइन कर इम्प्लीमेंट लिया। करा है? हाँ हाँ हाँ, it should किसी ने be। और इम्प्लीमेंट करा है ये, या वही वाले आंसर्स याद है? अरे लिंक लिस्ट में जो डिफरेंसेस होते थे, नहीं इम्प्लीमेंट और सर करोगे एक तभी तो बात, बताओगे ना। अगर सर इंटरव्यू की बात रही तो हम तो एरे से ही करने वाले, इजी है। नहीं हाँ Not so. बताओ यार कोई। I think in case of array, हाँ if we previously know the elements, या then we should use array in that case. we previously know, can you please let me know what do you mean by this? Previously know Like means size, you mean to say? like if we know that there are 100 elements Okay, in the scene, there okay, won't be more than 100 elements. Then we should use array. 100 elements means static. Sir, Statically know the size, something Yes. like that. Yes. अगर my स्टैटिक है, अगर उसका जो कितना द नंबर ऑफ नंबर्स वी आर एडिंग इनटू एन अरे, वो अगर स्टैटिक है तो इट्स फाइन, बट अगर हमारे पास ऐसे कोई स्टैटिक नंबर नहीं है, लाइक कम भी हो रहा है ज्यादा भी हो रहा है, तो इट्स Then बेटर टू यूज लिंक्ड लिस्ट इन दैट केस। मतलब डायनेमिक है तो आप लिंक लिस्ट यूज करोगे? यस, ओके, बिकॉज ये अगर आप, अरेज ये बढ़ेगा एक तो सेकंड इट मैं विल आपको बिकम पहले हेवी। बता दूं, ये आप आंसर दे रहे हो, मैं स्टैक कब यूज करूंगा, आप ये नहीं बता रहे एरे और लिंक लिस्ट में डिफरेंसेस, ठीक है? तो जस्ट टू मतलब करेक्ट एवरीवन। हाँ आप बोलिए प्लीज। sir, one is my basic query about the stack. हाँ हाँ प्लीज। So, can you please let me know that where is the exactly in the real world scenario, where is exactly we should use the stack? Yeah, I gave few scenarios in the beginning. If I'm asking you to implement the parking lot and all the cars will go out in the reverse order, then you what will you use? No, it's yeah, that's fine. But Okay. in the program, like this can be achieved under several cases. Okay, but in the programming, like Sorry, your voice basically, is cutting in between. I couldn't understand some of the words. am I audible now properly? Yes, yes, little better. Yeah, yeah. So I was actually in the programming. Let's say we have several problems like storing data in in the array or in the list. So like in the small problems, not in the very big problem like the parking slot and all. So in this small problem, is there any situation like we should use the stack Yes, a lot of particularly? situations, a lot of situations. So one of the ways, you know about a recursion of it, a Yes. bit maybe. Mm-hmm. Yes sir. It uses stack internally in function calls. Once we will study recursion, then we will go deep into that. So to convert the code of recursion into iteration, you need to use stack. Getting So me? there is one Okay. more point I have. And another application is the arithmetic problem solving, where bracket and the plus multiplications are comes. Yes. So if when you go to solve the problems, then you will face that problem. Sir, But what is iteration? what Means is? iteration means continuously calling every loop. Means what is मतलब Continuously for call for the Looping. same for function from the function. for while loop में चलाना आइटरेशन हो गया, ठीक है, हाँ हाँ आइटरेटिव हाँ है। या और got it. रिकर्जन मतलब एक ही फंक्शन को कॉल करते रहो।
Okay, okay, got it. रिकर्जन क्लियर हो जाएगा जब रिकर्जन पढ़ेंगे, अगर अभी क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो स्टैक को यूज करने के 100 जगह हैं, स्टैक को तो बहुत एक जैसे इंडेक्सेस, But जैसे आपको ये if it is a singly linked list, I हाँ mean, like if it is going straight, then it's better to actually use arrays because we can directly point out on which number of which index we are going to get. If we are using singly linked list, we have to go from start to the end to like addresses change कर करके जाना पड़ेगा. Finally, एक we'll get सेकंड एक सेकंड एक सेकंड आप प्लीज फिर से बताइए लिंक लिस्ट, क्योंकि मैं आपका नाम के साथ यहाँ लिख दूंगा। यहाँ क्या कह रहे हैं आप लिंक लिस्ट में? अगर लिंक लिस्ट में है तो if it is single linked list, हाँ हाँ like single linked हाँ हाँ list, हाँ हाँ तो उसमें हम लोग को लास्ट वाला एड्रेस पे पहुंचने का एक ही जरिया है कि ऐसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक करके जाना है, लास्ट एड्रेस पे पहुंचेंगे हम। टेल टेल सुना टेल आपने? हाँ, तो वहां से नहीं कर सकते आप। तो वही अगर सिंगल लिंक लिस्ट हम लोग टेल में पहुंचना है तो स्टार्टिंग से जाना पड़ेगा। अगर डबल लिंक लिस्ट है लाइक दोनों साइड हाँ का हाँ डायरेक्ट है हमारे पास, तो हमारे पास टेल का भी डाटा रहेगा और स्टार्ट का भी डाटा रहेगा। देन आप इट विल बताइए बी आप क्या कर रहे हैं, ये आपका हेड है ना? अगर हाँ, आप and आप if we have the if we have the knowledge, the address of header हाँ हाँ only to हाँ start the linked list, then it will ओके be a bad then it will be a bad decision if we are हाउ doing हाउ कैन यू टेल मी? so। एड्रेस आगे बढ़ते जा रहा है। एड्रेस आगे बढ़ता जा रहा Yes. है, हाँ बोलिए उसके आगे। अगर हम लोग को लास्ट एलिमेंट ढूंढना है उस लिंक्ड लिस्ट का, तो एड्रेस हम हाँ लोग को हेड से स्टार्ट करके एक के बाद एक के बाद एक आपको एड्रेस लास्ट एड्रेस क्यों ढूंढना है? टू गेट द लास्ट एलिमेंट, टू रिमूव इट एंड टू ऐड इन लाइक इंसर्शन डिलीशन के लिए। तो आपको लास्ट में क्यों जाना है? क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट है ना, तो अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो लास्ट में ऐड होगा और निकालना है तो लास्ट से ही निकालना है। तो कुछ और चेंज कर सकते हैं क्या लिंक लिस्ट को? डबल लिंक लिस्ट करना पड़ेगा टेल लगा के, लाइक कुछ टेल का पॉसिबल डाटा ही नहीं है क्या? पॉसिबल ही नहीं सिंगली लिंक लिस्ट में क्या? No, it's possible. Like we just remove the head pointer and move to the head dot next pointer, and ओके it will be removed from the first. नहीं, आप इसमें स्ट्रेटजी क्या फॉलो कर रहे हो कुंदन? एंड मतलब तो आपकी जैसे इंसर्शन हम लोग का फर्स्ट नोड में नहीं कर रहा था मैं, इंसर्शन हम लोग लास्ट नोड में कर रहा था। अगर इंसर्शन हम फर्स्ट नोड में करते हैं हाँ तो देन वो हेड वाला चीज काम आएगा। हो गया ना? No, हो गया it's या नहीं हो गया? I mean it will be implementation of stack, right? So या we can we have to like do this from the top. We don't have to go to the bottom, right? Because it's like out of rule. Yeah. From So yeah, Kundan, it is clear. You are right here. So Joy, are you clear with that? That if you have to follow the last in first out, then just insert at the head and just remove it from there. Then Yes, is yes, it fine or not? then it is fine. Yeah. Definitely, it's fine. So that is what All we you. need to do is just add an address and Yeah. All the operations will be over or not? yes, it will be fine then. Yeah. Then I think then we'll definitely use linked list. Your okay link list array का मतलब होना ही नहीं चाहिए. No, sir, it is not like I'm still with array. no, But you are not giving any answers for array ना, कोई बात लिख के सर आप क्योंकि बेस सर ये एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। अगर पार्किंग लॉट का भी एग्जांपल नहीं लेते हैं आई थिंक तो एरे साइज का तो ऐसा नहीं रहता है ना। एरे का तो हम लोग फर्स्ट एड्रेस ही लेते हैं, उसके बाद फिर इंडेक्स में जा मतलब उतना इंडेक्सेस क्रॉस करके एंडिंग वाला एलिमेंट लेना है ऐसे करके। यस, yeah, बट अगर actually एग्जांपल लेते हैं हम एप्लीकेशन यूज करने का, तो अगर पार्किंग लॉट का भी लेते हैं तो पार्किंग लॉट की साइज डेली अरे चेंज होने वाली नहीं है। तो मैं थोड़ा सा इसे रब कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए अरे में आप कैसे बनाओगे? लिंक लिस्ट तो थोड़ा सा हमने समझ लिया, यस सर। जो मैं प्रिफर करता आपने कोड करा होता, नहीं करा तो I would तो say that the array implementation is very tough because of the space complexity and time complexity also very big. तो आपने स्पेस और स्पेस एंड टाइम, एक सेकंड यहाँ लिख देता हूँ आपको, स्पेस एंड टाइम ज्यादा है एरे का। Right. नहीं, एरे का टाइम कम रहता है, लिस्ट ज्यादा सर लेता है। स्पेस और टाइम बट दोनों लिस्ट एरे का का हम लोग कम फर्स्ट होता है। एलिमेंट निकाल रहे हैं ना। एक सेकंड ना, एक सेकंड आप सब जब बोल लो ना, आप जैसे माधवी, कुंदन, जॉय, आप मुझे एक दो एग्जांपल तो दे दो। मतलब सर मेरा एग्जांपल मैं है जो पार्किंग लॉट का ही था। पार्किंग तो लॉट छोड़ो पार्किंग यार, लॉट
तो पार्किंग सर अभी थोड़ा सा आसान आसान से बताओ, एक दो नंबर ऐड कर ओके देते, 1 2 3 ऐड करवा दो बस, 1 2 3 4। ओके एक सर, तो अगर बता हम रहा स्टैक पहले। यूज करते हैं तो हाँ, पहला चार पहला नंबर 1 कहाँ ऐड करूं? 0 पे यहाँ पे जाएगा, 0 इंडेक्स, ठीक है। 0 इंडेक्स पे सर। हाँ हाँ, यस, अब बताइए आगे। एंड देन सेकंड इंडेक्स 0, 1 सेकंड पे, 2 पे, 3 ऐसे एक चलता सेकंड, जाएगा 2 सर। 2 1 पे गया ना, या 2 भी 0 पे चला गया? ये सर नहीं नहीं, 2 पे सर, स्टैक में हम वैल्यू इनपुट कर रहे हैं, इनपुट ही करना है ना सर। हाँ, पुश कर, इसको पुश बोलते हैं। हाँ ये सर पुश करना है, तो देन 3 एंड 4 ऐसे इंडेक्स पे आ जाएगा, ऐसे आएगा ना 2 पे 3 जैसे मैंने आएगा, बनाया? एंड यस सर, 2 पे 3 यस आएगा, सर। अच्छा। और ओके, पॉप कर, अगर पॉप करना है तो हम थर्ड इंडेक्स से पॉप करना शुरू करेंगे। तो आप इसका कुछ मेंटेन करके रखोगे क्या कि यस टॉप? सर, एक टॉप अच्छा, वेरिएबल रहेगा, ओके किस ओके। इंडेक्स तक मेरा वैल्यू फीड है। तो टॉप मेरा अगर मैंने हटा दिया तो टॉप यहाँ आ गया है ना? यस सर, अब आप इंसर्ट कहाँ पे करोगे? देन टॉप को +1 करके इंसर्ट करेंगे। इसी को वैल्यू जो होगी इसको अपडेट कर दोगे, है ना? कुछ यस ऐसे ही यस सर, यस सर। करो। ओके, No, या if we wanted to add one element on the top of that, then what should we ये do? ये ऑन टॉप ऑफ दिस। On the top, like step में हमेशा Yeah, top means पे add करते हैं ना? array size is हाँ हाँ full, and हाँ, Right. still So we want to add it. still we ठीक है wanted to add on the element. ये दिस आई एग्री, ये पॉइंट से आई एग्री कि अगर आपके साइज डिफाइन नहीं है तो लिंक लिस्ट यूज करेंगे। Then basically the what we do that the dynamic array will be applied here, and it will be take like more space complexity again for the only one element we add on the top of that. So we have to duplicate that array because of increasing of the size, वैसे right? एक चीज आप बताइए कि अगर दोनों में 10 एलिमेंट्स हैं, इधर भी 10 एलिमेंट हैं, तो साइज कहाँ पे कितना होता है? तो सर लिंक लिस्ट का ज्यादा साइज हो जाएगा, क्योंकि उसमें चेक एक करा है ना? पॉइंटर ओवरहेड रहेगा सर। हाउ मेनी ऑफ यू हैव चेक दिस, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, या नहीं चेक क्या करा? सर, किस चीज का ये सर? यही चीज कि 10 एलिमेंट दोनों में है, तो साइज किसका ज्यादा है? लिंक Size लिस्ट का सर, क्योंकि उसमें पॉइंटर भी है ओवरहेड, देख पर कुछ नोड देख कुछ लिंग्विस्ट सर। कुछ पे ठीक है। ओवरहेड है। एक नोड का साइज किसी ने चेक करा है कभी? सर Yes, it वो will be आपका अगर इंटीजर के लिए करते हैं तो सर 4 बाइट इंटीजर के लिए, एंड पॉइंटर अगेन 4 बाइट, ओके, तो और 8 इधर? बाइट हो जाएगा। और इधर से सर अगर पूरे एरे की बात only करते 4 हैं byte would be there. तो only 4 bytes. इसमें नहीं, अगर 10 एलिमेंट है तो ये 4 इंटू 10 हो जाएगा, 40 बाइट का एलोकेट और होगा। ये 80 हो और गया? अगर 10 एलिमेंट है तो 80 हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट सबको याद रहेगा या नहीं? रहेगा सर। यहाँ पे एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा आप कि बोलिए। it's very right that it could be that इट्स वेरी the ये इट्स hello, am I सॉरी, audible कट गया properly? बीच। यस, व्हेन यू से Yes. आई एम ऑडिबल प्रॉपर्ली, सिर्फ वो तो सुनाई देता है, उसके बाद नहीं सुनाई देता। हाँ बोलिए। Okay. So like in the linked list, like we agree that the value of the particular data type, it will be increased, like the overall size will be increased. But when we are storing very large data, like we are storing the class object, so in that way, like we don't have to measure, we don't have to measure play role of the address, storing the address. It will not affect too much, I think. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, मतलब आप आपने कह Let दिया, me लेकिन give आप जस्टिफाई क्या करना चाह रहे हो मुझे एक yeah मतलब uh, कहना uh, क्या चाह रहे हो, कंक्लूजन क्या है इसका? the conclusion ये है इसका कि let's say we have a class which has around 20 let's say 100 byte एक हाँ class हाँ, ले रहा है, and ओके we have to create linked list of that class, and we have to create the list of, right? So the store जो address store करेगा उस particular object का, so वो 4 byte ही होगा, अच्छा। right? But उसका जो क्लास का जो साइज है वो 100 होगा। सो अगर मैं 10 एलिमेंट की बात करूं तो 100 हाँ, इंटू 100, बट तो हम एक्स्ट्रा साइज जो हम उसका एड्रेस का ले रहे हैं वो सिर्फ 40 बाइट ही होगा। सो
सो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा, ये ज़्यादा वहाँ पे मैटर नहीं करेगा साइज, जहाँ पे हम लार्ज डेटा हम वहाँ पे जहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं। हम्म। ये बात कितने लोगों को क्लियर हो गई? बट कुंदन इज ट्राइंग टू से। आई सर, I'm clear. नहीं सर, नॉट क्लियर। क्लियर। तो So एग्जांपल basically, दो यार। I think like अगर वो 10 एलिमेंट्स है, उन 10 एलिमेंट्स को हम लोग इंटीजर ही क्यों सोच रहे हैं? उसके प्लेस में हम लोग कोई और क्लास नहीं तो ऑब्जेक्ट कुछ डाल दें, गेम ऑब्जेक्ट, समथिंग व्हिच इज बिग कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स, समथिंग लाइक दैट। इंटीजर ही ले लो आप अभी सिंपलिसिटी के लिए। सिंपलिसिटी इंटीजर में अगर हम लोग लेते हैं तो एरे वोंट लुक दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम, बट अगर हम लोग गेम ऑब्जेक्ट्स ऐसे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं then definitely array is very bad. तो लिंक लिस्ट भी तो बढ़ गई फिर। लिंक लिस्ट बढ़ गया मगर डायनेमिकली सेव्ड है एक जगह पे, पूरा स्टैटिकली एक पूरा एक बंच ऑफ डाटा को ऐसे नहीं कर दे रहा है। प्लस हमारा मेमोरी मैनेजमेंट में इट स्टोर्स एज ब्लॉक्स, राइट? और अगर ब्लॉक के हिसाब से देख रहे हैं कि लाइक एक से ज्यादा ब्लॉक अगर यूज कर ले रहा है तो इट विल बी वेरी प्रोसेसिंग हार्ड when we are storing a like large data in an array. ऐसे नहीं होता। आई मीन एरे आई या थिंक माधवी, ऑब्जेक्ट वन एरे सेकंड, बना सकते हो। वन सेकंड, लेट्स माधवी स्पीक। या प्लीज। मींस एरे आई थिंक कंपाइल टाइम पे रन होता है ना, उसकी हाँ मेमोरी एलोकेट, और लिंक्डइन की तो आई थिंक रन टाइम पे ही होती है हाँ, मेमोरी एलोकेशन। मतलब ठीक है। कहाँ पे आपको क्रिएट होता है? हीप पे, स्टैक पे? ये आपको क्लियर है क्या? लिंक लिस्ट इज क्रिएटेड वेयर? नहीं, मैंने मींस अभी मेरा इंटरव्यू चल रहा है तो मैं थोड़ा सब देख रही थी, पढ़ ओके ओके। यार हीप पे क्रिएट होता है हाँ। रन टाइम पे लिंक लिस्ट में। तो आप इसमें क्या कुछ कहना चाह रहे थे? इसमें मतलब आपका कंक्लूजन क्या है कहने का? तो मींस वो बोल रहे थे ना कि हम बहुत सारे गेम ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं और एक जगह पे एक स्टोर कर लेते हैं, तो मींस एरे भी इस तरह से ही वर्क करता है। बट आप ऐसा नहीं है कि दोनों बेनिफिशियली है, बट जब बात आती है रन टाइम की और आउटपुट्स की तो बेस्ट वे एरे ही रहता है। रन टाइम मतलब कहने का क्या मतलब है आपका? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? हाँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो एरे की कम लगती है कंपेयर टू लिंक लिस्ट। क्यों लगती है आपको? जो अगर ये ओएन है और ये ओएन है तो एरे फास्ट होगा क्या? अगर मैं ट्रेवर्स कर रहा हूँ सिर्फ एक एरे को? डेफिनेटली, बिकॉज एड्रेसेस अलग अलग जगह पे है लिंक लिस्ट में, तो उधर पे जाने का कॉस्ट तो रहेगा। नहीं होता और ये इतना। तो बगल बगल ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसे होता तो नहीं। नहीं ठीक है, थिंकिंग तो अच्छी है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन होता नहीं है इतना। मतलब आपका थोड़ा पता है जॉय कैसा कहना है? जैसे आपने इफ एल्स लूप लिख दिए काफी सारे, तो आप कहोगे इफ एल्स में जाने में स्लो नहीं हो जाएगा थोड़ा कोड? मतलब व्हाट यू आर ट्राइंग टू से कि थोड़ा वैसे में कहना चाह रहे हो? गेटिंग माय पॉइंट? नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं। मतलब ये मैटर नहीं करता कि आपका, हाँ अगर आपको इंडेक्स बेस्ड सर्च करना है तो सर्टेनली एरे फास्टर है। इंडेक्स बेस्ड सर्च से मेरा कहने का मतलब है कि आपको किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर डायरेक्टली जंप मारना है तो एरे फास्टर है। लेकिन अगर आपको एक से दूसरे में जाना है तो नो, बोथ आर सेम। गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ट्रैवर्स, पूरे लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना, पूरे एरे को ट्रैवर्स करना बराबर है, लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे जाना है तो एरे फास्टर है। तो ओके, हम अपना इसके लिए डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे हैं कि एरे यूज करना चाहिए लिंक लिस्ट। तो कुछ कुछ पॉइंट्स रखे थे, इंसर्शन डिलीशन लिखा हुआ था यहाँ, इसको हटा दूं क्या या रखूं? हटा दो सर, मतलब स्टैक के लिए पॉइंटलेस है ये। बताओ सब एग्री कर रहे हैं इससे और नहीं, या कोई मतलब कहना चाह रहा है कि नहीं होगा? दोनों में ओवन लग रहा है। सो मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज और बता दूं। So this is a board. There are certain operations in case of stack data structure. So addition को addition नहीं कहते, we call it push. Push means adding inside the array, adding inside the stack. Okay. Removal को removal नहीं कहते, इसको pop कहते हैं। Pop मतलब निकाल लेना, ठीक है? Push मतलब डालना। और भी कुछ वर्ड्स होते हैं, peek करके भी होता है।
पीक मतलब सिर्फ एलिमेंट को चेक करना कि टॉप पर एलिमेंट क्या है। जैसे मैंने इसमें अगर पीक करा ना तो मेरे को 4 आ जाएगा वापस। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इसमें 4 आ जाएगा, मतलब गेट द टॉप एलिमेंट। yes sir. एक और टर्मिनोलॉजी होती है टॉप, जो एरे में यूज होता है, और इसको यूज करते हैं हम, टॉप को यूज करते हैं टू फाइंड आउट कि कौन से इंडेक्स पर आपका एरे है, मतलब क्या चल रहा है। ठीक है, so these are the terminology. So we will, from now on, I will say push, pop, peak, top, so that you are also comfortable in that. So Sir, right, can you please again repeat the top? टॉप मतलब है कि टॉप, ये देखिए आप किस इंडेक्स पर हो। जैसे टॉप ये अभी बता देगा कि टॉप आप 3 इंडेक्स पर हो। गेटिंग माय पॉइंट? क्यों? क्योंकि आपके में 4 एलिमेंट है। क्लियर हुआ? Okay, maximum number of index होता है. मैक्सिमम नंबर ऑफ Index. या इसको मतलब टॉप प्लस 1 करोगे तो आप बोल दोगे साइज इतना है ना? Okay, sure sir. So we will use push and pop, other such words. So my point here is कि हमने देखा है right now till now कि that push and pop both are taking time of O1. Is everyone agreeing with me? Is everyone able to understand this? Yes. Yes. Especially new ones, Joy, Madhvi, Yes. Pooja, हाँ, Manas. yes. Any doubt? Please let me know. कोई घबराने की या ऐसी कोई बात नहीं। I also sometimes मैं भी कभी कभी गलत राह में मतलब stupid questions पूछता हूँ। So ऐसा कुछ no question is stupid है ना? हाँ हाँ. पुश एंड पॉप होता रोवन। अगर इससे कोई एग्री नहीं कर रहा है तो प्लीज लेट मी नो। नहीं, समझ आ गया ये। तो मैं ये वाला इंसर्शन डिलीशन तो कोई पॉइंट ही नहीं उठता इसमें। हाँ, ये वाला पॉइंट सिग्निफिकेंट है कि अगर आपको एलिमेंट्स नहीं पता तो ये तो एरे की ये तो वीकनेस है। ठीक है, एरे स्ट्रक्चर ही ऐसा है जिसकी वीकनेस है कि आप साइज पहले बताना ही है ना? तो ये तो ठीक है, ये इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। और क्या बात है? ये स्पेस एंड टाइम कोई कुछ कह रहा था, क्या बोल रहे थे इसमें? मेरे को समझ नहीं आया, बीच में रोक दिया था शायद किसी ने। Sir, actually, when we want to, as the point is already cleared by you itself, when you want to access any specific data, and actually here either we can push it at the top, and or either we can pop from the top. So actually, we know where the exact point of the operation is. So at such time, arrays are fast and linked list. Actually, linked list is the same because we are pushing and popping in the first element itself. So actually it doesn't matter as well. सो दैट्स व्हाट द थिंग इज। अगर आपने पहले इंप्लीमेंट करा होता तो किसी ना किसी ने ऐसे इंप्लीमेंट कर दिया होता कि वो एलिमेंट को इंसर्ट यहाँ पे कर रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? एलिमेंट को इंसर्ट एट द एंड कर रहा है। तो इसमें आपका पुश जो हो गया वो ओ एन हो गया। आई होप एवरीवन कैन अंडरस्टैंड माय पॉइंट। और पॉप भी ओएन हो गया। तो आप यहाँ पर कहते कि लिंक लिस्ट सही नहीं है क्योंकि इसमें पुश एंड पॉप दोनों ओएन ले रहे हैं। बट जब ये आपका पुश भी आप बिगिनिंग में करो और पॉप भी बिगिनिंग में करो तो कोई इशू ही नहीं है ना? Yeah, order of one both. या सो ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन योर इम्प्लीमेंटेशन की आंसर क्या होगा लिंक लिस्ट में, बिकॉज लिंक लिस्ट डायनेमिक है, सब आपको बोल देती है, आपको जो करना है करिए। सो दिस इज द थिंग। So I think only The one. same point. Let's say we are array our array is out of bound and out of size, and when we are increasing the top of the size, so we have to create the another array with the double of size, right? So यस। this will take extra time, या right? So यस। this in this way, this in this way actually I wanted to say that the array is not beneficial, right? Because it will take extra time to create a bigger size array. Yeah, Yeah, exactly. yeah, that is true. But again, if the number of elements are known, which are known to you in the most number of cases, also remember this point. Hmm. मतलब ये बात कहना आसान है कि हाँ हमें तो पता ही नहीं होगा, सब पता होता है हमें। कोई प्रोग्राम देखा है जहाँ पे आपको नहीं पता होता?
Yeah, most of the cases we will know, but majority it can नहीं be. पता तो ठीक है, नहीं आप ढूंढना ऐसे प्रोग्राम हो, मुझे भी भेजना. Sir, in games it can be the case actually. Yeah, it can be the case. But the point is that ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको 10 एलिमेंट दे रखे हैं और आप बोल रहे हो मैं लिंक लिस्ट यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे साइज नहीं पता भाई कितने हो सकते No, no, no. That हैं. won't be the case. Yes. So that is the thing that I want to say. String size निकाल लो, उतने साइज का बना दो आप. ये आपका array. Yes. और साइज हम यूजर से भी ले सकते हैं, ये सब तो आता होगा ना आपको. साइज वी कैन टेक फ्रॉम द यूजर. हमेशा एक सेकंड में इसको रब कर दूं. हमेशा हमें ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि इंट 10 लिखना है ना. ये तो क्लियर है ना. Yes, sir. यूजर से भी हम साइज ले सकते हैं 10, तो उतनी हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है. तो अगर हम यूजर से साइज ले सकते हैं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं. इंटीजर साइज ऑफ स्टैक, स्टैक डॉट साइज लिख दे रहा हूं इसे, ठीक है. सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग अगेन. आई एम राइटिंग स्टैक डॉट साइज, मतलब स्टैक एरो साइज कर दो, C++ यूज कर रहे हो. सो दिस इज अ थिंग. सो यस, दिस इज आई थिंक ऑल अबाउट स्टैक. इतना ही था. अब स्टैक से, हाँ किसी का कोई क्वेश्चन था, कोई बीच में कुछ कह रहे थे. So, sir, actually, the whole discussion boils down to only one point, that whether we know the exact size or no, not. Otherwise, else is same for both the cases. या इट इज सेम. मेरे को कुछ दिख नहीं रहा, अगर दिख रहा है तो आप बताइए. नहीं सर, सेम ही है. एरे एंड लिंक लिस्ट ओवर स्कोर नहीं कर पा रहे, लेकिन ये चीज अवॉइड करना देखो इंटरव्यू में कि हाँ जी इंसर्शन डिलीशन इन द बिगिनिंग या इन द मिडल वगैरह करेंगे तो लिंक लिस्ट यूज कर लो. ये डिस्कशन अवॉइड करना अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, क्योंकि ये फ्लो में निकलता है. Actually, I didn't get the point of stack while answering. या थोड़ा सोचिए उसमें और फिर आंसर दीजिए. Yes. Same will happen in case of Q also, that we will discuss Q. Yes. So this is the thing that I wanted to discuss by discussing it, because आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में स्टैक को इम्प्लीमेंट करिए खुद अपना, फिर आप बताएंगे कि आपको कौन सा सही लग रहा है. देखते हैं फिर कौन सा कर रहे हो. लेकिन कोई ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि मैं हमेशा एरे यूज कर रहा हूँ या हमेशा मैं लिंक लिस्ट यूज कर रहा हूँ. हाँ काफी के साथ ये होता है कि अकॉर्डिंग, हाँ काफी के साथ ये होता है जस्ट वन पॉइंट कि वो लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, तो बोलते हैं कि एरे इजी है. तो ऐसे ऐसे बोल के भी अपने आप को इंटरव्यू में मत फंसाना कि मेरे से लिंक लिस्ट हो नहीं पाता. वो लिंक लिस्ट के 2 क्वेश्चन और दे देगा, है ना. तो ये जैसे प्रशांत, आई थिंक ही वाज सेइंग दैट सिंस आई एम कंफर्टेबल विद एरे सो आई यूज एरे. या दिस इज अ No, रियल sir. थिंग. दिस I इज was not saying I am okay. comfortable with array, but for stack I go with array. For stack I will use. I prefer to use array because both operations are at same level time complexity. okay fine. Yeah Malad, you if size का limit पता है हमको, then arrays. लेकिन वो एरे में स्पेस ब्लॉक हो जाती है अगर आप साइज 100 ले रहे हो ना, वो शायद आपको क्लियर होगा. Yes. 100 आपने नहीं यूज कर रहे तो वो वेस्ट हो जाता है. वेस्ट हो जाएगा वो स्पेस. तो ये इशू रहता है एरे के साथ. But sir, if we know the size, then we will take the exact amount of the array, right? हाँ वही है. So no need to waste the memory if we know the size. लेकिन फिर आप पॉप वगैरह कर रहे हो तो स्पेस खाली भी तो हुई ना. If you have to insert, then it will create the double size and you will put into only the 2 elements and the 98 of the size will be wasted. हाँ बिल्कुल सही बात है शिव. Okay, yeah. So when you write the code in front of the interviewers, they ask you why you took this size. You remember 256 लेते थे, कुछ स्टूडेंट ना उसको 1000 ले लेंगे बिना सोचे, है ना. आपको याद होना चाहिए कि एस्काई जो है 256 वैल्यूज लेता है, इसलिए मैं 256 ले रहा हूँ. यह आंसर आपको देना है, नहीं दोगे तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा. 1000 ले लिया बिना सोचे आपने एस्काई वाला क्वेश्चन में साइज, तो दैट इज इनकरेक्ट.
Since there are 256 ASCII values, that's why we take array size is equal to 256. So that is the answer that you need to give. Yeah. तो ठीक है, ये क्लियर है. मैं थोड़ा सा क्यू भी डिस्कस करना चाहूंगा इस लेक्चर में, क्योंकि हमारा ये हो गया है और असाइनमेंट सबमिट नहीं करे. मैं किसी का असाइनमेंट चेक करूं तो बाय नेक्स्ट लेक्चर विल इट बी कंप्लीटेड? So, especially new ones, what do you think? Will you be able to implement stack by yourself? Joy, Madhvi, Manas, or what do you think? You need some more guidance, Pooja. Sir, we'll need to implement the old ones first, right? No. Do stack. I will talk with Mayank. सीधा stack. हाँ, stack मतलब मेरा कहने का मतलब ये stack का आप थोड़ा सा कर लो, फिर बाकी बाद में कर लेना थोड़ा सा. We'll be able to do that. या stack तो array ही है, और क्या कर रहे हैं आप, है ना? हाँ. ये array है. array में ही करना है. लिंक नहीं, मैंने 2 क्वेश्चन दे रखे हैं ना, मैंने 2 क्वेश्चन नहीं. मैंने नहीं देखा एक्चुअली. नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ बाकी से कि मैंने एरे और लिंक लिस्ट दोनों दे रखे हैं ना, या नहीं दे रखे? ओके ओके, दे रखे होंगे. हाँ, बहुत लिखा है प्रणव. तो ऐसे नहीं, असाइनमेंट थोड़े सोच समझ के बनाए गए हैं. तो ये चीजें हैं. तो असाइनमेंट्स हमने जो बनाए हैं वो बेसिक आपको करने हैं. जो जो बोनस ने लिखा वो सब आपको कंप्लीट करने ही करने हैं मैंडेटरीली. उसके अलावा आप बाकी भी एक दिन में करते रहिए थोड़ा, जैसे के रिवर्स स्ट्रिंग है, और भी ऑड इवन नोड्स हैं, ये है वो है, 100 चीजें हैं. तो उससे थोड़ा ब्रेन शार्प होता रहेगा. तो ये चीजें हैं. तो अगर क्वेश्चन ये है कि implement stack using linked list, so we'll need to do linked list first, right? इम्प्लीमेंट यूजिंग, तो देखिए लिंक लिस्ट वहां पे आपको बनानी है, बाकी सब लोगों ने बना दी है, तो लिंक लिस्ट यहाँ पे अपनी बना देना. नहीं, गेटिंग माय पॉइंट? मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट सम ऑफ अस एक्चुअली डोंट हैव प्रॉपर ये लिंक लिस्ट. आई डिड डेटा स्ट्रक्चर्स 2 years ago. मैं इंजीनियरिंग. हाँ, वो चीज है. So we'll need to actually हम लोग गेम डेवलपमेंट में इतना ऐसे नहीं करते. हाँ, so we need time to actually revise linked list properly, then we can get up to speed. ओके श्योर. ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब अगर लेक्चर्स आप देख लें, जितना फॉलो हो सके उतना करें. पॉइंट इज व्हेन यू डू द इम्प्लीमेंटेशन देन योर क्वेश्चंस आर डिफरेंट, एंड विदाउट दैट द क्वेश्चंस आर डिफरेंट. सो दैट इज अ थिंग. So right now there are 2 possibilities. One is looking into the linked list assignment, and other possibility is going a bit into queues. So what do you think? Which one would be fine? I don't want to look into the stack questions right now because a lot of people haven't even touched it. Just 2 people have done it. Just 2 people. So let's start a bit about the queue. Let's just the basic. So queue data structure. So queue is like queue line, जो हमारे देश में काफी जगह लाइन लगती रहती है ना? जैसे ट्रेन का टिकट लेने के लिए लाइन लगना, इधर लाइन लगना, उधर. अगर इफ यू आर इन मुंबई तो वहां पे तो बहुत लंबी लंबी लोकल ट्रेन के लिए भी लाइन लगती थी. सो लाइन में ही है हम सब भी. So queue means a line, a kind of that thing. So the difference between stack and queue is this follows FIFO approach. First in, first out. What I mean to say is, जो सबसे पहले स्ट्रक्चर में अंदर गया है ना, वही सबसे पहले बाहर आएगा. So queue is also a kind of data structure. By data structure we mean to say that this structure is used to store data. Okay, that is the definition of data structure. And queue is a data structure which follows first in first out approach. That is the one which goes inside it first, which will be the first one to come outside. So let's say if I'm inserting something like 1 2 3 4 5 6, then रिमूवल या बाहर निकालने का ऑपरेशन भी यही होगा. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है. सो मैंने इस टैग्स में भी कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करी थी. इधर भी कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, लाइक एनक्यू. एनक्यू का मतलब है एडिशन. टर्मिनोलॉजीज हैं.
ऐसे डी क्यू, इसका मतलब है रिमूवल। गेटिंग माई पॉइंट? सो क्यू तो ऐसे ही डेटा स्ट्रक्चर है, सिंपली सीधा एक से नीचे जा रहा है, ये क्यू है। दिस इज कॉल्ड एज क्यू। एनी डाउट, एनीबडी हैविंग एनी डाउट? सिंपल सा है। सर Yes, anybody having any doubt inside in case of queue? First in, first out, जैसे लाइन लगी होती है। इसमें हम प्रीक भी यूज कर सकते हैं क्या? इसमें सॉरी, प्रीक ट्रिक, प्रीक पी पी डबल ई के प्रीक, जस्ट सॉरी आई couldn't हाँ understand. Can you type it? हाँ He is saying that peak, P-double-E-K, Peak. peak. अच्छा, Yes. पीक। ओके, इसमें पीक आप कैसा दिखाना चाहोगे? पीक में आप क्या दिखाना चाहोगे? दिस वन? नहीं, जैसे हम एरे और लिस्ट में भी यूज करते हैं वैसे। ओके, जैसे स्टैक में यूज करते हैं, अगर आपसे पीक पूछा जाए तो आपको वन आंसर देना होगा इसमें, क्योंकि वन इज द वन विच इज इंसर्टेड फर्स्ट। गेटिंग माई पॉइंट? नहीं, मुझे ऐसा इंटरव्यू में पूछा गया था, तो मैं तब आंसर नहीं दे पा रही। हाँ, बोल दो, बना सकते हैं। फर्स्ट जो फीफो में फॉलो हो रहा है, मतलब आप वन आंसर दोगे, लेकिन इसमें ओके। 6 नहीं आना चाहिए। हम्म। सो दिस इज अ क्यू। आप बताइए इसमें किसी को, और किसी को अगर डाउट है तो। अगर मैं इसको इससे कनेक्ट कर दूं। हाँ बोलिए, कोई बोल रहा था कुछ। सर एक क्वेश्चन, जैसे कि क्यू में डिफरेंट टाइप ऑफ क्यू होते हैं, हाँ हाँ, तो स्टैक में क्या डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैक होता है या सिंगल एक ही स्टैक होता है? स्टैक एक्चुअली वो फॉलो करता है ना, लीफ हो, तो उसमें होता नहीं है और कुछ। ओके सर, क्योंकि कभी देखा नहीं तो वही क्वेश्चन नहीं होता, होता नहीं है। ओके सर, फाइन Sir, सर। sir, in hello. हाँ बोलिए प्लीज। हाँ हाँ, यू आर ऑडिबल। Sir, in queue, we हाँ, just have to maintain two pointers, means not pointers, but two locations to insert, right? Means as we have said that we just pop the element. Sorry, we just dequeue the element यस whichever has occurred the first. Means here यस the one will get deleted first, यस and so we have to delete from the start, and we have to enqueue at the end, right? यस। ये मैं आपको बताना नहीं चाहता, ये आप खुद सोचना क्या करोगे आप। ये मैं यहाँ पे डिस्कस ही नहीं कर रहा। बस Okay, मैं okay. आपको ये बताना चाहता हूँ कि डी क्यू आप करोगे तो वन आना चाहिए, फिर टू आना चाहिए, फिर थ्री आना चाहिए, फिर फोर आना चाहिए, फिर फाइव, फिर सिक्स। ये मेरे को चाहिए। Yeah, got it. अब आप कैसे करोगे ये हम नेक्स्ट लेक्चर में सुनेंगे, इसलिए मैंने इसको इंट्रोड्यूस करा है। Yes, yes. अगर मैं सिक्स को वन से कनेक्ट कर दूं तो इसे सर्कुलर क्यू बोलते हैं, है ना? जैसे सर्कुलर लिंक लिस्ट होती है। सिक्स को अगर वन से कनेक्ट कर दूं तो सर्कुलर क्यू है। एग्जाम्पल क्या हुआ? एग्जाम्पल है कुछ? एग्जाम्पल है रेड लाइट, है ना? देखी होगी रेड लाइट आप सब लोगों ने। रेड ट्रेन की टिकट। ट्रेन की टिकट भी यार होती है सर्कुलर क्यू क्या? भाई कैसे? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन सर्कुलर क्यू तो नहीं होती। हाँ, ट्रेन की क्यू तो वैसे क्यू तो है, लेकिन So maybe two देन ticket रेड लाइट, counter, रेड two लाइट ticket कैसे counter. सर्कुलर है? टू टिकट काउंटर इज एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर क्यू। Yeah, हाउ? व्हाट टू टिकट काउंटर? व्हाट इज टू? just kidding. ओके, सॉरी आई डिडंट गेट द जोक। बैड सेंस ऑफ ह्यूमर आ गई। No, no, no. सर देन हाउ द रेड लाइट इज सर्कुलर क्यू? बताइए आप, रेड वापस कैसे आ जाता है बार बार? कभी कभी आप कहाँ पे रहते हो? ओके, सॉरी, आई थॉट अबाउट द ट्रैफिक, नॉट द लाइट। ओके, ट्रैफिक लाइट ही बोल रहा हूँ मैं भी। No, no, I just thought about the traffic vehicles only, not ओके the ओके, light. नहीं मैं सॉरी, मैं लेट मी क्लैरिफाई, दिस इज अबाउट ट्रैफिक लाइट। मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूँ। इसको येलो बोलते हैं, ठीक है? ऑरेंज या येलो जो भी आप कहें। तो बार बार रेड आ जाता है ना?
हमें रेड ही दिखता है, रेड लाइट बोलते हैं इसे। तो ये देखिए सर्कुलर क्यू फॉर्म कर रहा है ना। अगर आप, हम डिटेल में अभी नहीं जा रहे, आप अगर इमेजिन करो कि मैं अगर सेट कर दूं कि रेड जो है वो रहेगा, जनरली रेड 2 मिनट के लिए, ये 3 सेकंड के लिए, और ये भी बड़ा छोटा होता है 30 सेकेंड्स। तो देखिए मैं सर्कुलर क्यू फॉर्म कर सकता हूँ, समझ पा रहे हो आप? यस सर। आपने कहीं देखा हो सिटीज में तो टाइम भी बताता है कि भाई आपका 30 सेकेंड्स बाद ग्रीन से हट जाएगा, 3 सेकेंड। देखा होगा शायद आप सब लोगों ने कभी। यस सर। तो ऐसे ही चलता है वो। इसके स्ट्रक्चर में नहीं जा रहा, स्ट्रक्चर में भी थोड़ा चले जाएं तो थोड़ा आपको ये भी चीजें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। क्लास अगर इसकी कैसे बनाएंगे, क्लास अगर मैं रेड लाइट बना रहा हूं तो इसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या है, एक तो स्ट्रिंग है, एक है ना स्ट्रिंग नेम, फिर है इंट टाइम। यही तो हमें चाहिए, और कुछ चाहिए क्या? है ना। ऐसे ही करके तो क्लास बना सकते हैं रेड लाइट। स्ट्रिंग नेम मतलब रेड है, ब्लू है, रेड है, येलो है या ग्रीन है, और टाइम कितने टाइम के लिए रहेगा ये, है ना। सिर्फ इसको मैं अपडेट करते रहूंगा, चल जाएगा। ऐसे चलता है डेटा स्ट्रक्चर। आई होप यू आर एबल टू relate with the real time applications. So this is the example of circular queue. Any doubt, anybody having any doubt? I'm not going into details like whether you will use array or linked list. That's what will be the topic of discussion in the next class, that you need to tell after thinking. क्योंकि एक ब्यूटी है, दिखता है आसान है लेकिन है बहुत टफ। ये मतलब मैंने थोड़ा एग्जांपल दे दिया। दिखने में लग रहा हो कि क्या है, इसमें है ही क्या, लेकिन इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत टफ है। So actually, when we're developing the games, हाँ हाँ। like I'm not able to figure out like where is this like a queue or stack will be useful in the programming. So this is Okay. I'm facing some of the time like. Okay. So the beauty of a good programmer is he can use any data structure, but it might not be optimized. And generally in the real-time applications, I think I told you this before. In real-time applications, we use array most. Second is hash map. Third one is linked list. Other than that, कभी-कभी set use कर लिया. Other than that, कोई data structure use नहीं करते. ऑब्जेक्ट पूलिंग में क्यों यूज Yes. करते हैं? इसमें ऑब्जेक्ट पूलिंग। अच्छा, ऑब्जेक्ट पूलिंग आपने कहाँ पे बनाई? Where you collect objects and then use it, like it depends कि like उसमें किस टाइप का चाहिए, कि like जो लास्ट में लिया उसी को पहले यूज करना है, कि it doesn't matter कि like कौन सा कब लिया, it's just like you're collecting stuff and you're just taking them out. तो उस समय ऑब्जेक्ट हम लोग पूलिंग we can add both of them in that place. In fact, we can do it normally also. We don't have to use stack and queue. But then the only thing is कि like हम लोग कहाँ, मतलब उस ऑब्जेक्ट के पूल के साथ, वो ऑब्जेक्ट के कलेक्शन के साथ हम लोग क्या क्या करने वाले हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम लोग स्टैक यूज करें कि क्यू यूज करें। कि ऑफ कोर्स मैंने भी कभी यूज नहीं किया, मेरे को भी इतना जरूरत नहीं आया, इट्स ऑलरेडी वेरी मच। वही मेरा पॉइंट है कि ऑब्जेक्ट पूलिंग भी बहुत कम लोग बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट पूलिंग का मतलब ये है कि आपने एक पूल बना दिया है। अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ वो क्या कहना चाह रहे थे जॉय, तो एक ऑब्जेक्ट पूल का मतलब है आपने पूल बना दिया, लेट्स से इसके अंदर 10 चीजें हैं जो पिक करने को रेडी है, तो हम क्यू यूज करते हैं यहाँ पे। कहने का मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपको कुछ काम करवाना है तो आपने 1 पिक कर लिया, फिर किसी और से काम कराना है आपने 2 पिक कर लिया, फिर किसी और से काम कराना है आपने 3 पिक कर लिया। ऐसे होता है। और जब ये काम इनका खत्म हो गया तो 1 वापस आ गया, फिर 2 वापस आ गया। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज हाउ इट इज। अदर देन दैट आपने शायद सिस्टम डिजाइन के बारे में आई एम नॉट श्योर कितना आपने पढ़ा होगा, बट ऐसा होता है जैसे फेसबुक एक कंपनी है ना। फेसबुक दिख रही हमें एक कंपनी है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे सिस्टम चल रहे हैं, मल्टीपल सिस्टम्स। ये S1 सिस्टम है, ये S2 सिस्टम है, ये S3 सिस्टम है, ये S4 सिस्टम है। एंड दीज सिस्टम्स टॉक विद ईच अदर। जैसे मैसेंजर है, मैसेंजर इससे पूछता है S4 से कि आप मुझे बताओ कि किस कौन कौन इनके फ्रेंड्स हैं, तो ये इससे ऐसे पूछ के लाता है।
तो ये जो कॉल्स होती है ना, ये क्यू के थ्रू चलती है। गेटिंग Network माय queue, पॉइंट? right? हाँ, क्यू के थ्रू चलती है, क्योंकि देखिए अगर कोई कॉल पहले गई तो वो पहले रहेगी, कोई कॉल बाद में गई तो बाद में रहेगी। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग क्यू। सो दीज आर द एग्जांपल्स। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. सो ये है चीजें, लेकिन अभी हमें बेसिक स्ट्रांग रखना है। बेसिक स्ट्रांग रखना है तो हम क्यू पढ़ रहे हैं, और क्यू पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये बताना है कि आप क्यू में डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज करेंगे इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये चीज हुई अबाउट दिस थिंग। उसके साथ सर साथ Okay. एक, हाँ हाँ बोलिए। सर recent So yeah. calls is example of queue or stack? किसका किसका कौन सा? Recent calls, रीसेंट कॉल्स? हाँ, रीसेंट कॉल मतलब क्या होता है? just अच्छा, you मोस्ट। explained in Facebook, like if we have messaged someone, then it is considered as the recent contact, and it appears at the top. So I think it is following stack, right? सो लेट्स ट्राई टू सी। अगर आपसे इसे डिजाइन करने को बोला जाए ऐसे, तो आपको मोस्ट रिसेंट कॉल जो है वो सबसे टॉप पे रखनी है, और जो पुरानी है वो बाहर रखनी है। तो ये आप, एक तो ये अगर आप स्टैक फॉलो कर रहे हैं तो ऐसे आपको रखना पड़ेगा, लेकिन आप इसमें क्यू अगर फॉलो कर रहे हैं, we can use both, I think. बट दोनों बताइए क्यू में कैसे यूज करोगे आप? सर्कुलर है तो पीछे से लाइक बैक डायरेक्शन से पढ़ना स्टार्ट करो। लेकिन आप ये बताओ ना, जो सबसे नई कॉल है वो सबसे बाद में आएगी ना? हाँ, क्यू के एंडिंग में रहेगा, या फिर बोला जाए कि लाइक जस्ट मतलब अगर सर्कुलर सर्कुलर क्यू है तो हमारा हाँ, जो फर्स्ट नोड है उसके पीछे वाला, लाइक उसके उसके पास जो एड्रेस रहेगा पीछे वाले, इसके पहले वाले लेकिन आप, लेकिन सर्कुलर क्यू भी हो, जैसे सर्कुलर क्यू है यहाँ पर, अगर आप इसमें डी क्यू करोगे तो 1 आएगा सबसे पहले, 6 नहीं आएगा। ओ हाँ, वो तो है। तो जो इन्होंने एग्जांपल दिया है कॉल कॉल रिकॉर्ड्स का, या हमारे फोन में भी जो कॉल आती है मिस कॉल, इसमें स्टैक कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है। गेट एवरीबॉडी गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. Yes. सो देयर आर सेवरल एग्जांपल्स डिपेंडिंग ऑन आप कैसे सोच रहे हो। हम जब ट्री पढ़ेंगे, जो मैं अभी जाना नहीं चाहता उसके डिटेल में, तो हम देखेंगे कि कहाँ पे ज्यादा यूज होता है, कौन यूज होता है, कैसे यूज होता है। सो दिस इज अबाउट दिस। एक और टाइप का होता है क्यू, थोड़ा सा डेंजरस टाइप का होता है वो, एंड बड़ा ज्यादा यूज होता है। सो लेट्स से एलिमेंट्स आर लाइक दिस। लेट्स से 3 इज अकरिंग फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, 8 टाइम्स, और ये 7 बार हो रहा है, ये 6 बार हो रहा है, ये दोनों 5 बार हो रहे हैं, है ना, और ये 3 बार हो रहे हैं। ये क्या लिखा है मैंने ऊपर, कितने टाइम ये अकर हो रहे हैं किसी एरे में। तो इस टाइप का मैंने क्यू डेटा स्ट्रक्चर बनाया है। तो इसको प्रायोरिटी भी कह सकते हैं ना, कि इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। तो अगर आप क्यू से निकालोगे कुछ, तो सबसे पहले 3 बाहर आएगा, फिर बाहर आएगा सबसे पहले 4, फिर 5। अब कौन सा बाहर आएगा सबसे पहले? अब आएगा 2, क्योंकि देखिए दोनों की प्रायोरिटी बराबर है, तो जो पहले इंसर्ट हुआ था उसे बाहर निकालिए, फिर 1 आएगा। ये रिमूवल ऑपरेशन लिखा है मैंने। And such type of queue is called as priority queue. Yes. So what I'm trying to say here is I'm giving priority to each element. I'm giving priority. What is the priority? होता है ना, इंडिया में काफी प्रायोरिटी चलती है, जैसे आप आईएएस ऑफिसर हो, प्रायोरिटी हाईएस्ट, और अगर कोई गरीब इंसान आ गया, प्रायोरिटी लोएस्ट। ऐसे ही चलता है ना इंडिया में। तो प्रायोरिटी क्यों चलाते हैं सब हमारे डिपार्टमेंट्स में। तो आप कह सकते हो कि ठीक है, आपकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है 5, इसकी प्रायोरिटी भी हाईएस्ट है 5, ये भी नेता है, इसकी प्रायोरिटी कम है, इसकी प्रायोरिटी बहुत ही कम है ना। तो ऐसे ऐसे अगर आप प्रायोरिटी असाइन कर रहे हो किसी को, तो प्रायोरिटी क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। अगर प्रायोरिटी देखिए सबकी सेम है, 1 1 1 1 है, तो सिंपल वो ही है, वो क्यू ही है। राइट? आर यू फॉलोइंग माय पॉइंट? अगर सबकी प्रायोरिटी 1 1 1 है, तो अगर आप रिमूव करोगे तो सबसे पहले 1 रिमूव होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी क्यू में किसी की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, तो आप उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे। हाइयर वैल्यू मींस मोर प्रायोरिटी, हाइयर वैल्यू मींस मोर प्रायोरिटी।
So this is a kind of data structure which is called as priority queue, used a lot. Yes, let me know if it is clear to everyone or not. Yes. कोई डाउट हो तो आपको बताइए. तो हमने 3 डेटा स्ट्रक्चर्स देखे हैं अभी क्यू में. एक तो क्यू ही है, नॉर्मल सा क्यू, सिंपल सीधे लीनियर चल रहा है. एक है सर्कुलर क्यू और एक है प्रायोरिटी क्यू. 3 चीजें हमने देखी. अब आपको बाय नेक्स्ट लेक्चर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि आप कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करोगे टू इम्प्लीमेंट दीज. आपको आता है सब कुछ, ठीक है, एरे और लिंक लिस्ट यूज होना है और कुछ यूज नहीं होना, तो आप बताएंगे. And so anybody having any question, please let me know. Right now, we will look into few of your submissions in case of linked list. So new ones, आप सबको समझ में आ रहा है या speed is little fast or slow or whatever? नहीं आ रहा है सर. Okay, okay. But we'll need practice. हमको practice में बहुत time जाएगा. हाँ प्रैक्टिस, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहे हैं ना, मतलब कंसेप्ट समझ रहे हैं. ओके ओके. टाइम का हो जाएगा, नॉट एन इशू, वो चीज हो जाएगी. सो थोड़े से हम एक बार असाइनमेंट चेक कर लेते हैं. I think we'll look into last time also. Again, let's थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस. डबल लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट कर पाया क्या? Yes, sir. Let's start with Krishna. So why so less submissions? क्या हो रहा है, मेरे को थोड़ा सा समझाइए. और जो सबमिट कर रहे हैं वो आए नहीं. क्वेश्चन टफ है क्या, क्या सीन है? सर सर्कुलर अभी वो सर ने खुद इम्प्लीमेंट की थी वीडियोस में, इसलिए अभी उसका वो ड्रिपल में नहीं किया. अच्छा, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट. इन्होंने सिर्फ पुश करा है फ्लेमिन ने. सो हेल्प मी आउट एवरीबॉडी reviewing this code. Let's see what he is doing. He's trying to create a circular linked list. And तो आप जैसे सर्कुलर लिंक लिस्ट क्रिएट करो तो उसका नाम भी सर्कुलर लिंक लिस्ट रख दिया करो, ठीक है, जिससे क्लियर रहे, क्रिस्टल क्लियर. I think Pranav and Prashant are here, so let's look into their code first. So a basic question I have. हाँ. Um, we generally use to create a linked list. We generally use pointer to pointing to the another node. So so my question is like we can also use their data type. I mean if we create a node class, so we can also use their type, the same type variable to point the other node, right? So help me out to create it. So you are, which language you are using? C++ all here, all what? I mean any language, like in the C++ as well, we can create the Let's say I'm data creating a type, class any Kundan, class. and let me know what variables it should have. Let's say we have created a node class. Node. Yeah, class node, and in that class we have created one integer data, and the other variable is the node type. The node type This is itself. Yeah. node. Yeah. Now it is a pointer or what? I mean, yeah, that's my question actually. I mean, it could be the pointer, or it could be the data type of node.
But tell me, just by having a data type, how will you access the pointer? So depend. That's why I asked you in the beginning, is it a language thing or not? अगर आप यही चीज C sharp Okay. में कर रहे हो, आपको करने देगा. ये कर दो Okay. बस. So yeah, the depend is in C++ we cannot. C++ में आपको एड्रेस चाहिए ना. एड्रेस तो सिर्फ पॉइंटर से ही आता है और कोई तरीका तो है नहीं, राइट? Okay, got it. Thank एड्रेस लिंक होते हैं ना एक दूसरे से. you. Yeah, got it. तो ये है. बाकी लैंग्वेजेस अगर आप यूज कर रहे हो तो ये यूज कर सकते हो. जैसे जावा में ये करते हैं जो लिखा है मैंने यहाँ. तो इसमें इसको रेफरेंस बोला जाता है. ये इसको पॉइंट कर रहा है. मतलब Right. 1 जो है 2 को पॉइंट कर रहा है, 2 3 को. सब लैंग्वेजेस में ऐसा है. सी और C++ में नहीं है ऐसा, क्योंकि यहाँ पॉइंटर्स है. एड्रेस उसी को एक्सेस कर सकते हैं. रेफरेंस टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है. Actually C sharp में भी pointers हैं. तो But पॉइंटर भी यूज कर सकते हो आप, फिर रेफरेंस भी यूज. रेफरेंस है ना, इफ आई रिमेम्बर करेक्ट. तो आप yeah, right. so circular linked list. Pranav, are you there? Yes. So can you help me out to look into this code? This is quite big to even look. I had given. I There were two methods to add the nodes in the linked list. So one is to add at the start, and other is the circular linked list one. This So one. add start circular means this add start is related to this circular linked list or not? Yes, this is related to circular linked list. So what is the difference between these two? This was the old one, add node at start, but I forgot to delete it. Okay, so I this. implemented this before. So the above one is not needed, right? No. So else part is more important. And what will be the time complexity of this? Order of n. Order of n. Why? Because we have to traverse through the whole list. Like there are 5. When the next node will be null, then this loop will get broken, and I will add a new node after that. But if I'm correct, and your head is here, right? Then you can just insert it here and point it this thing to this, or not, and point your tail back to this thing. Is it fine or not? I mean, is it possible if we are having the tail, or if I'm missing something here? So what I'm trying to say is, let's say this is a kind of data structure which is already present to you. 1 2 3 4 5, and you are maintaining a tail also. This is head. So this is our original data structure, and let's say I'm trying to insert 6. Then I can insert 6 here and point to tail to this and this to this. Is it O1 or ON? What do you think, everyone? O1. But you are trying to traverse it because you are not maintaining tail, or what? I am not maintaining tail. That's why. Okay. So that is the importance of tail. That just things get. क्योंकि tail में ज़्यादा नुकसान नहीं है, बस आपका एक स्पेस छोटी सी जा रही है. Any disadvantage of using tail? Just one pointer memory. That's it. Nothing else. बट स्पेस के लिए तो बहुत ज्यादा है ना. मतलब आपका यहाँ पे आपको 1000 है, आपके 1000 एलिमेंट्स. Yeah. It is negligible. Yeah. Totally, it is negligible. डिलीट नहीं कर रहे क्या आप? Not in this one. इसमें केवल प्रिंट करवाया है मैंने और ऐड किया है सर्कुलर में. ओके, जस्ट एडिशन के लिए. तो बाकी लोग जो अटेम्प्ट करें, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू यूज टेल एंड ट्राई टू यूज इट इन O1. ये प्रिंट इतना बड़ा क्यों हो गया? एक्चुअली मैं इसमें पहले लूप
एक्चुअली लूप डिटेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अदरवाइज इन्फिनाइट लूप चलता रहेगा। अगर मैं प्रिंट सर्कुलर लिंक लिस्ट को प्रिंट करूंगा तो इन्फिनाइट लूप चलेगा। तो मुझे ब्रेक करवाना है जब मुझे बीच में ओवरलैप हो रहा है वैल्यूज। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? इसकी ब्रेक कराने की, मतलब लूप फाइंड आउट करने की। I think it depends. I mean, if the data is in the starting of the position on nearby head, or on the head, then it will be one, and after that it will be an. सो मैक्सिमम कितनी हो गई? Order of n. यस, और मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ n। Yeah. Yeah, he's using the concept of slow pointer and fast pointer, right? हाँ हाँ। Yeah, so order of n. ये काउंटर वेरिएबल क्यों यूज किया गया है? हाँ, that's why I'm not also getting it. प्रणव, यूज करने की जरूरत है क्या? और एक्चुअली मुझे यस यस है जरूरत। और आप ये डेटा चेक कर रहे हो यहाँ पर, डेटा में चेक करूंगा क्या? तो डेटा तो सेम नहीं हो सकता। नहीं नहीं, बट सर्कुलर जब सर्कुलर लूप अगर होगा लिंक लिस्ट में तो वैल्यूज जैसे सेम हो जाएंगी ना एक पॉइंट पे, अगर मुझे ब्रेक करना है लूप को। तो वहां पे आप क्या चेक करते हो? नेक्स्ट एड्रेस चेक करते हो या डेटा चेक करते हो? मैंने इसमें इस केस में डेटा चेक किया है। लेकिन आप में ये बताइए ना कि अगर मेरी लिंक लिस्ट, आई होप यू हैव ऑलरेडी गॉट माय पॉइंट, मेरी लिंक लिस्ट ही ऐसी है तो क्या होगा फिर? सब वन वन ही स्टोर कर रहा हूँ। करेक्ट। इसमें एड्रेस एड्रेस चेक करना पड़ेगा, हाँ। ऑलरेडी विजिटेड हुआ है नहीं। बिल्कुल। सो आपको एड्रेस चेक करना है यहाँ पे, है ना? ओके। क्योंकि आप सब लोग ये याद रखना, कभी भी ये प्राइमरी मिस्टेक है जो हो जाती है कैंडिडेट से। आप लिंक लिस्ट पे डेटा कंपेयर नहीं कर सकते कहीं पे भी। जहां पे भी आप डेटा यूज कर रहे हो ना लिंक लिस्ट में, एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स, एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स, मैं आपको बता देता हूँ एक जगह डेटा कहाँ यूज करेंगे। एक्सेप्ट दैट आप गलत कर रहे हो कोड, आप वहीं पे रुक जाना। इफ यू आर, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इफ यू आर यूजिंग डेटा, data is what? Data is this. If you see the class, where is it? हाँ, ये है आपकी क्लास है। तो यहाँ पे आपने डेटा यूज कर रखा है। अगर आप इसको यूज कर रहे हो ना कुछ चेक करने के लिए, तो आप कुछ गलत कर रहे हो। फ्यूचर में कॉम्प्लेक्स कोड्स होंगे तो ये डेटा से काम बनेगा नहीं, एड्रेस ही चेक हाँ करना। बिल्कुल 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 सही बात। तो एक एग्जांपल जहाँ ये हो गया, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, Actually, ये I'm not able. I'm not heard about the like what Prashant or Pranav maybe said that. क्या? सॉरी, अभी अभी जस्ट प्रणव ने कुछ कहा ना, वो शायद उन्होंने मैं बोला सुन कि नहीं पाया। कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो डेटा काम नहीं चलेगा। कॉम्प्लेक्स ना भी हो तो भी वैसे नहीं चलेगा, लेकिन No, वैसे कॉम्प्लेक्स। I mean, whenever we wanted to delete some node हाँ and हाँ we gave the specific data, then we have to find that data. हाँ, वो अलग चीज है, वो तो ठीक है। Hmm. नहीं, वो तो पॉइंट ही अलग है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर आपको डेटा डिलीट करना है तब तो यही डेटा ही डिलीट करोगे। लेकिन आप पॉइंटर्स की जगह आप डेटा से खेलने लग गए तो बातें गलत हो जाएंगी कुछ। Yeah, right. तो जैसे ये एक एग्जांपल है, या इसका थोड़ा सा और थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। तो काइंड ऑफ ये एक क्वेश्चन है, इसमें आपको आंसर निकालना है कि दो इस ये एक लिस्ट दे रखी है, इससे आपको दो लिस्ट बनानी है। एक लिस्ट में सिर्फ ऑड नंबर हो, दूसरे लिस्ट में सिर्फ इवन नंबर हो। गेटिंग माय पॉइंट? एक लिस्ट में सिर्फ ऑड नंबर हो, दूसरी लिस्ट में सिर्फ इवन नंबर हो। ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं एक।
तो इसमें आप डेटा यूज करोगे क्यों? क्योंकि आपको चेक करना है ना ये ऑड है या इवन है। क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? ट्राई करना है, Yes. क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है जितना आपने पढ़ लिया है अभी के लिए। बस ये है कि नल चेक्स अच्छे से होने चाहिए। तो ये एक क्वेश्चन है जिसमें आपको पता करना है कि ऑड है तो उसे एक और लिस्ट में डालो, इवन है तो उसे एक और लिस्ट में डालो। तो ये एक क्वेश्चन हो गया जहां पे आपको डेटा यूज करना है। अदर देन दैट ये जो प्रणव ने यहाँ कर रखा है इट इज लिटिल इनकरेक्ट, ये वाला पॉइंट। सो दिस इज अ थिंग। अदरवाइज दिस सर्कुलर लिंक लिस्ट इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें आप देख रहे हो ना ये प्रिंट करने में कितनी प्रॉब्लम है, बस प्रिंट ही नहीं हुआ था। इफ एवरीवन कैन अंडरस्टैंड दैट, ये प्रिंट सर्कुलर लिंक लिस्ट करना कितना टफ है। We have to check the instead of null, we have to check the address of the head element. उससे भी आपका नहीं होगा ना, उससे भी आपको सर्कुलर लूप, आपको याद हो लास्ट लेक्चर में हमने सर्कुलर लूप देखा था, तो Right. आपको कुछ वाला कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। आप कैसे करोगे वो आपका। मैंने ये फेस किया था क्योंकि मेरा पूरा इनफिनाइट लूप चल गया था प्रिंट, नॉर्मल प्रिंट में। हाँ, आई एम श्योर So कुछ ना one कुछ of the बीच में मिस्टेक्स हुई होंगी। हाँ yes, बोलिए। one of the answers is was that like we have to maintain one variable on the node so that we can check that if this node is circular or not, right? तो जस्ट So फॉर द सेक ऑफ दैट आप साइज बढ़ा दे रहे हो अपने लिंक लिस्ट का। so in the same way we don't need to add that variable. We can check the the pointer address instead of that. यस, एंड इवन इन दैट आप कैसे करते हो वो आप पे डिपेंडेंट है। Yeah. सो ओके, so I would to like to mark it 60, but I really appreciate कि आपने कंप्लीट करा है। I want others also to have a look into this. Let's see Prashant Kaur. Again the name इसका आप सर्कुलर लिंक लिस्ट सर नहीं चल रहा क्या? सर मेरा रॉन्ग सर कर देंगे सर। एक रॉन्ग हो गया मेरा, मैंने फुल सर्कुलर बनाया, वहां टेल जो ऑलवेज हेड को पॉइंट कर रहा है, लूप नहीं इसमें पॉइंट किया। अच्छा, लेकिन टेल हेड आपके हाथ में होता है हमेशा, आप ये यस याद रख। सर, यस सर, लेकिन हमने जो ये कंप्लीट सर्कल लिंक लिस्ट बनाया जो कि ऑलवेज टेल इज पॉइंटिंग टू हेड। तो क्या फायदा फिर टेल लेने का, आपको क्या लगता है? नहीं सर, वैसे ही मतलब कंप्लीट सर्कल कर दिया, लूप वाला करना है अभी। अच्छा, मतलब वैसे आपने सोचा नहीं कि अगर मैं टेल हेड सेम जगह पॉइंट कर रहा हूँ तो क्या फायदा नहीं टेल? सेम जगह नहीं सर। अच्छा, टेल जो है हेड को पॉइंट कर रहा है, टेल के एड्रेस में हेड है। तो एक ही तो बात हुई ना? नहीं, आप नहीं यही कह सर, रहे हो ना? हेड फर्स्ट नोड है और टेल लास्ट है, लेकिन लास्ट के एड्रेस में हेड है, ऐसा कंप्लीट ये हेड सर्कल। है, ये हेड है और यस टेल कहाँ सर, है? यहाँ लास्ट 4 पे। ये टेल है और फिर आपने क्या किया? इसके एड्रेस में हेड को डाला है। मतलब इसको ही हेड कर दिया ना, ये करा ना? नहीं सर, इसके एड्रेस में हेड डाला है, टेल के यानी नेक्स्ट इसके में हेड डाला है। टेल पॉइंट तो तो है। it's pointing to the head. तो फिर टेल इज पॉइंटिंग टू द हेड, टेल नेक्स्ट पॉइंटिंग टू हेड, तो इसमें क्या गलत है? यस सर, मतलब मैंने सर बीच में कहीं लूप नहीं किया है, कंप्लीट सर्कल पे किया है। Yeah, it is circular linked list only, right? हाँ, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा So आप क्या कह रहे this is नहीं वो सर circular आपने linked list. लास्ट एग्जांपल लिया था तो बीच में सर्कल का लूपिंग का लिया था, तो वैसा मैंने नहीं टेस्ट किया सर। That would be a loop check for printing. या That लूप पे नहीं किया मैंने सर, हो। अच्छा, सर्कल आप कह रहे हो कि प्रिंट जो कराया आपने वो कह रहे हो? नहीं सर, मेरा जो लिंक लिस्ट है वो पूरा सर्कल में क्रिएटेड है, ऐसा नहीं है कि जैसे टेल कहीं मिड में पॉइंट कर रहा yeah, हो। it, मतलब Okay, इनसाइड so लिंक लिस्ट कोई लूप नहीं है सर, कंप्लीट लिंक लिस्ट ही sir, सर्कल है। yeah, he actually was he actually wanted to say that like 4 is pointing to 3 or 2. They wanted to like create. ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, Yeah. ऐसा नहीं किया। 4 could be pointing to anything. नहीं सर, वही बोल सॉरी, रहे एक हैं तो वॉइस मैंने कट रही। ऑलवेज सर हमने हमेशा जो टेल है वो हेड को पॉइंट कर रहा है, टेल नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड।
तो यही तो होता है ना ऑलवेज। सर्कुलर लिंक लिस्ट, या हाँ वही, नहीं लास्ट एग्जांपल में आपने बीच में एक लूप क्रिएट किया था, वो नहीं इम्प्लीमेंट किया। नहीं वो तो चाहिए भी नहीं है सर्कुलर लिंक लिस्ट। ओके सर, It's हाँ तो exact. ये किया है सर। तो ये सही तो है। Yeah, it's ओके correct. सर, वो कंफ्यूज हो गया अभी आप वो जो बीच में कल का एग्जांपल दिया था। नहीं नहीं नहीं, सर्कुलर लिंक लिस्ट तो यही होती है जो आपने बनाई है, सही है वो। तो थोड़ा देख लेते हैं इसको क्या हुआ है। तो आपका इंसर्ट आफ्टर वैल्यू ये क्यों चल रहा है ये इतना लंबा, जब आपने टेल ले सर रखा है तो? नहीं नहीं सर, ये आफ्टर वैल्यू मतलब मिड में इंसर्ट कर रहा, कोई वैल्यू दिए उस Okay. वैल्यू के बाद इंसर्ट कर। तो एक चीज बताओ आप, वैसे मैं कोड नहीं देख रहा, क्रिएशन वाला फर्स्ट। ये एक चीज का आंसर देना आप यहाँ पे, अगर ऐसे दे रखा है तो आप कहाँ इंसर्ट कर रहे होगे वैसे? मेरे को 2 के बाद इंसर्ट करना है, कहाँ इंसर्ट सर करोगे 3 को? अगर आफ्टर वाला फंक्शन कॉल करते हैं आफ्टर वैल्यू, हाँ तो इट विल हाँ, इंसर्ट आफ्टर यहाँ 2। ना, यहाँ ना। यस सर, यस सर। तो ये सही तो नहीं है। और अगर सर बिफोर वैल्यू है तो वो 2 के पहले वो तो सही चल जाएगा है ना, बट आप देख रहे हो ना इसमें फॉल्ट है एक। Yeah. सर दो फंक्शन बनाए, एक आफ्टर वैल्यू एक हाँ बिफोर लेकिन, वैल्यू, एक हाँ 2 के बाद इंसर्ट हाँ करने लेकिन के लिए, प्रश्न एक 2 के पहले। वो तो सही है, लेकिन आफ्टर 2 आपने इंसर्ट जो करा है वो हम्म। इसके बाद ही कर दिया ना, इधर करना चाहिए था, है ना? नहीं सर, अगर जैसे हमने एक सेकंड में फिर पाइवोट से अच्छे से बना वैल्यू देता हूँ। यस। ये है आपकी लिंक लिस्ट, हम्म ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, हम्म। ये इसको। अब आपको 2 के बाद इंसर्ट करना है। अब आप मुझे बताइए कि कौन कहाँ इंसर्ट कर रहा है। आपको सर 2 अगर 3 इंसर्ट करना है 2 के बाद। तो सर ये 2 के बाद आफ्टर 2 पोजीशन नहीं कर रहे हैं सर, वैल्यू से कर रहे हैं। हाँ वैल्यू से कर रहे हैं ना, तो किसके बाद हाँ तो करोगे आप? 2 के बाद करेंगे। इधर ही ना? हाँ यस सर। तो गलत हो गया ना ये, इसके बाद करना था ना। किसके बाद सर? ये भी तो 2 है ना तीनों। अच्छा सब 2 है, ओके हाँ सर। हाँ नहीं हाँ। नहीं सर, हमने सिंगल वैल्यू पे किया, जो फर्स्ट इनकाउंटर उसके बाद। लेकिन आप ये याद रखो ना, जब आप लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट कर रहे हो तो लिंक लिस्ट इज नॉट अ सेट, इट कैन हैव सेम हाँ यस वैल्यूज सर, आल्सो, ओके सर। सो कीप दैट थिंग इन माइंड। So, Okay. so sir, it will not follow the FIFO approach, right? If we, व्हाट इज दैट अप्रोच? फीफो क्यू वाला? so will it follow if we add the 3 at the first occurrence of 2? वी एट 3, बट यहाँ फीफो की क्यों बात आ रही है? Okay, no, I just misconcepted. Yeah, no ये तो issue. कोई बात नहीं, कोई है आपका आप बताइए। नहीं, got it. ओके, ये तो इन्होंने एक पता नहीं फंक्शन लिखा है इंसर्ट आफ्टर वैल्यू, बट वो मैं बता दूं कि वो भी सही नहीं है। मतलब वो कहना चाह रहा था मैं, इंसर्ट बिफोर वैल्यू तो सही है ना, आपको 2 से पहले इंसर्ट करना है होगा। तो एक दो चीज डिलीट है क्या इसमें? इज डिलीट इज प्रेजेंट देयर? आई डोंट थिंक सो। नहीं सर, डिलीट नहीं है, इंसर्ट है और क्रिएट है डिस्प्ले से। और इंसर्ट कुछ और हमेशा पूछता है क्या ये इंसर्ट कहाँ पे करना है? यस सर, यस सर। यार ये ऐसा आपने वो क्रिएट किया। आपने सिंपल बना दिया फिर इंसर्ट। क्योंकि देखिए व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम हियर इज बिकॉज आपने एसटीएल के देखे हो फंक्शंस या किसी और लैंग्वेज के फंक्शंस देखे हो, दे डोंट आस्क यू वेयर डू यू वांट टू इंसर्ट। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, तो वो तो ऐड जैसा हो जाएगा ना, अगर कोई डायरेक्ट एक सिंगल वैल्यू दे रहे हैं तो लास्ट में ऐड कर देगा। हाँ वैसे ही करना चाहिए आपको। तो वो है ना, ऐड फंक्शन है सर, कहाँ है? फर्स्ट फंक्शन ओह अच्छा उसके अच्छा, ऊपर सर, फर्स्ट ओके फंक्शन हाँ हाँ यही ऐड। मैं ढूंढ रहा था। ओके ओके, इसका नाम आप देखिए, नाम आप सेम रखिए, इसका नाम आपका इंसर्ट होना चाहिए था। क्योंकि ओके सर। क्योंकि आप सब फॉलो कर रहे हो ना, इंसर्ट एट बिगिनिंग, इंसर्ट एट एंड, इंसर्ट एट दिस, तो आपका इसका नाम भी इंसर्ट होना चाहिए था। एक जो आप, क्योंकि आप लाइब्रेरी बना रहे हो काइंड ऑफ,
ये मेरे को आपको लग इसकी Okay. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? सर ये टेल पे इंसर्ट हो रहा है, 1 है। हाँ ये सही है। तो ये दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये डिलीट क्या कर दिया? वो सर टेम्प वेरिएबल जो नोड एक क्रिएट ओह, कर रहे हैं उसको टेम्पररी डिलीट, मतलब कोई नल कर रहे हैं बस, वो आपने इसका बोला नाम था भी, उसको डायरेक्ट। हाँ हाँ सही है, इसका टेम्प अंडरस्कोर नोड लिख दो इसका नाम। Prashant's voice is very funny when when his internet connection is off. Star Wars voice. इसमें वेयर इज रिमूव हियर? रिमूव क्या दूसरे में पूछा है क्या? रिमूव नहीं होगा इसमें। मतलब रिमूव नहीं हो पाएगा क्या? नहीं डिलीट का नहीं किया है सर, सर्कुलर में भी करना है। अच्छा, कर देते अच्छा रहता वो। ओके ट्रवर्स सर, आपका हो जाएगा। ट्रवर्सल भी नहीं किया क्या आपने? है ना सर, डिस्प्ले होगा एक, ये डिस्प्ले लिस्ट ठीक है, एक सेकंड इसे पब्लिक भी में देख फर्स्ट लीजिए। क्वेश्चन। ओके ओके। कि तो प्रणव हम ऐसे भी तो कर सकते थे नहीं? ये देखिए एक अच्छा तरीका है, बाकी कोड देखने पे हमें आता है। व्हाट ही इज डूइंग इज कि आप जब तक आपका टेम्प हेड पे वापस नहीं आ रहा सारे एलिमेंट प्रिंट कर दो नहीं। सो दिस इज आल्सो अ वेरी गुड वे। Hmm. एवरीवन सीइंग दिस थिंग। तो ये Yes, sir, but there is some extra variable we are using the temp. कहाँ यूज कर रहे हैं? No issues. बट आप तो अगर आप दो लूप पॉइंटर यूज करोगे करने तो के आप लिए चाहिए ही ना। हाँ यू लूप करने के लिए चाहिए। और अदरवाइज आप उधर तो दो एक्स्ट्रा और यूज कर रहे थे। And again the complexity order of n. हाँ कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एनी तो आएगी है ना? No, there will be extra complexity, right, for detecting a loop. And कहाँ? here there is no need to detect a loop. वहां पे टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ओएन ही है ना? Yeah. Okay. तो आई थिंक दिस इज अ बेटर अप्रोच टू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। Yes. Yeah, इसमें this एक is और all, the same address is checking, right? The head address with the Yeah. temporary. यस यस। Yeah. Cool. Hmm. और अगर एक और वे है इसमें, आप थोड़ा सोचिए एक और, क्या टेल का यूज कर सकते हो कुछ? टेल कैन नेक्स्ट जब तक हेड को पॉइंट ना करे सर। यस, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। सो दीज आर सम ऑफ द वेज ऑफ डूइंग इट। It या looks सो simple. हाँ, सो अपने 5 मार्क्स बढ़ा देते हैं, ये अच्छा वे है। बस रिमूवल नहीं है इसमें। ओके सर, कर देंगे। सो सर्कुलर लिंक लिस्ट कुड बी यूज्ड टू इम्प्लीमेंट सर्कुलर क्यू आल्सो, तो आप उसके बारे में थोड़ा सोचना। ओके सर। Why this add to empty मत, अधिराज इज नॉट हियर, अदरवाइज कैसे पता करेंगे ऐड टू एम्प्टी क्यों लिखा है इन्होंने? ठीक है, मैं इसको अलग से देखूंगा। अधिराज इज नॉट हियर राइट? नो ही इज नॉट हियर। So this is just a normal deletion, right?
Yes. Yeah, but it's a doubly linked list, sir. It's a doubly linked list. Yes, sir. Let's directly look into delete. It's remove, sir, Okay. not delete. So because Okay. delete is a keyword, right? Right. Yeah, remove add is the only function. There is no remove function. Yeah, yeah. I'm just watching that thing only. So this Okay, is okay, remove yeah. actually, right? Okay, okay, yeah, sure. Yeah. Okay. So you are asking for the position where you want to delete. Yes, sir. I'm not deleting using data. Okay. And once it is deleted, your head is okay, head is pointing to the head next. Head pointer. So that's just for the position one. Right. That code is a little different from the rest. So any specific issue that you face here? Otherwise, it is quite similar to the normal delete. Yeah. Not a lot of changes. Just those changes required due to the doubly linked list. Right. So any one of you implemented the reverse of the linked list? Yes, sir. Uh, Actually, the link that I passed on in the chat in the start of the session, Mm-hmm. that has all the implementations that I have done till now. So it has a reversing a linked list, and it also has a reversing from a position from a starting position to an ending position that the user specifies. So some of you were saying in the beginning that you were not able to complete the reverse linked list. Can you please let me know where you were stuck? Yeah, me, sir. So where you were stuck, can you help me out in that? Yeah, sure, sir. Because I want to understand what you are thinking. Yeah. So this was For the link. Yeah. yeah, I can explain. Okay. Just populate anything. Okay. So I put a head on the first. Then a temporary one pointer, temporary two pointers for 2 and 3. Let's take PQ. Is it fine? So that I don't need to No. write. So P should be pointing here then. Okay, no. I was taking P at the 2. P at the Q, 2 and Hello. yeah. Yeah, P at the 2 means at the second, and Oh, Q yeah, at the yeah. 3. Okay. So I was following this approach. Actually, the video from the last lecture uploaded today itself. So I was just recalling that this structure should follow, and the logic is behind something here. So what I did it for two elements. Means P of next should be the head. But don't use the head variable. Okay. Here also you need to use one variable like T. T should be pointing to head. Yeah, And so there you, will be a 4 pointers. yeah, head is, don't count head. Head is already there. Just count T, P, Q. Just I was three not extra. I was not even using it T. I was just P pointing to head. Let's do that only then. Okay. P next. P of next is head. Then Then comes head of next to Q. So this will reverse only 2 1 3, but I couldn't implement it for the loop, these states, because what happens then again tried to rearrange the pointers. So if you see here, the pointers are here is P at the 2, right? mm-hmm. At the 1 here is head, Mm-hmm. and at the 3 there is Q. Mm-hmm. Then I again rearrange them, like make 2 as a head. 2 as head. Because after all we are just reversing it, right? You need to go ahead now. Why you are going back? P को आपको head करना होगा ना. You need to point P to head, head to Q.
Yeah. Yeah, again, I also tried it as well. So there is a 4 ahead as well. So I just q is equal to q of next. So I just moved the q ahead. So Q is here. okay. So again, so if you see here, we just have to point. We just need a pointer at 3. So p p is equal to head of next. I did that. P is equal to head. Head of next. Okay. So p is at the 3 right now. Okay. And now that 3 should points to 2. So I was not getting how should I do it, because I wasn't using any pointer. I was using only 2 pointers apart from head. So have one more pointer, but anyways, you are only traversing head, so you can solve it using this approach also. Means so only using 2 pointers. Yeah, head is also there. Head is Yeah. pointing here, right? So P next is pointing to head. That is fine. So P next is pointing to head. That is fine. Now what you need to do? You need to move your head ahead. But there will be, yeah, sure. But Head is equal to P, right? head is equal to p. That's fine. But how to connect the broken part of the link list? Our Which is broken. there is if p is pointing to head, then there is no link between p and q, right? It is there now. You know about this thing, Q. Yeah. I have q, no issues. So But you how can to? assign P is equal to Q. P is equal to Q. Head is equal to P. Okay, and I just have to loop it. Yeah. So this is P. Now Q is here. Yes or no? Yeah. So can you just rub it? The main two. Yeah, 2 has gone to the left at the place of 1. So now 2 is point. 2 is here at the leftmost end, right? Yeah. So 2 is pointing to 1 right now. As of now, this is the thing. This is how our linked list is looking like right now. So again, 3 should point to 2. Yeah. So p of next is equal to head. P dot next is equal to head. Yeah, that's what we did as the first statement. So Okay. initially what was this? Initially तो ये था ना, देख लेते हैं कि आपका head था. This is was your head. This was your P. P of next is equal to head. Yeah, So this found is the it. first statement ना. Yeah. तो ये हो गया इससे. Yes. और आपका Then आपका Q. ये जो है ये Q है. Yeah. तो ये Q को तो आपको असाइन करना पड़ेगा कि P का नेक्स्ट. ये भी करना पड़ेगा आपको, है ना? ये Sir, किया था. sir. हाँ बोलिए. Okay. Yes. But P of next is head, right? So okay, no. P of next is equal to head मतलब आपने पॉइंटर चेंज कर दिया ना. Yeah. यही तो करना आपको. रिवर्स हो गए ना ये. Yeah, ये हो गया. Yes. Q जो है वो आपका P का नेक्स्ट है. ये इससे पहले होगा स्टेटमेंट. Q is equal to P next. That's क्योंकि आपको स्टोर करना है ना आगे वाला पॉइंटर का है. yeah. Then comes P next is equal to head. That means ये आपका शिफ्ट हो चुका है. हो चुका है. Then we just have to link the two P and तो Q. कैसे करेंगे आप? हेड को क्या पॉइंट करना है? P. तो हेड पॉइंटिंग टू हियर, है ना? और P पॉइंटिंग टू Q. अब नेक्स्ट Q यहाँ पे आ गया, Q यहाँ पे आ गया, है ना? ये देखिए ये तो वाइल लूप में है ना. ये वाइल लूप में है, उसके साइड ये है. गेटिंग माय पॉइंट? नहीं. Yes, sir. Q is equal to P next. P is next is equal to head. ये है ये. आपको हेड को भी T लेना पड़ेगा.
अदरवाइज आप बाद में फंसेंगे, जो मैं अभी दिखा नहीं रहा, तो हाँ पहले ही मैं exactly. मतलब बता दूंगा। Yeah, exactly. I followed this as well. Means after that, what was happening? The gap between head and the shifting point was getting increased as I'm moving नहीं ahead. वो नहीं होगा, बाद में आप सिर्फ वहीं फंसोगे जहां पे आपको हेड को पॉइंट करना है 4 पे, अदरवाइज कहीं नहीं। हम्म। नहीं आप बताइए, अब इसको चलाइए आप आगे, बताइए कि कहाँ पे आप, वेयर यू आर स्टॉपिंग। Means actually, I was doing like similar things. Like P of next is equal to head. Then I have paper as well. So P of next is equal to head. Then I was doing head of next is equal to Q, I guess. सो ये चीज थोड़ी गलत है ना, क्यों कर रहे हो आप ये, हेड ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू, Hmm. फिर क्या हो गया आपका 2, ये हो गया 1, And 1 is pointing to 3. अब क्या करोगे आप, हेड इज, हेड यहाँ पर है ना, और क्यू यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, आप क्या कर रहे हैं फिर? Next step में Q Q of next is equal to P. No. First of all, Q next means Q is equal to Q of next. क्यू इज इक्वल टू पी ऑफ नेक्स्ट, Sorry, Q of next. Q is equal to Q of next means just ओके, increasing. एंड नाउ, Then P is equal to head of next. ओके, ये हर बार नहीं चलेगा ये आपने जो करा है, हाँ, आप करिए। या exactly. ये नहीं चल रहा था. हाँ नहीं Exactly. तो वो है ना। Yeah, that's where I stuck. हम्म, So I अब क्या will किया आपने, ये अब ये हो गया आगे। अब I want to point that P of next is equal to 2 at the back of 2, but I couldn't. नहीं Then आपने पहले एक जो मिस्टेक आपने कर दी, आपने 1 को यहाँ बीच में ले आए हो, हाँ, यही गलत है। yeah. 2 शुड बी पॉइंटिंग टू 1 ना, है ना, क्योंकि ये बस इतना रखो, आप कुछ 1 जो है, इट शुड नॉट बी पॉइंटिंग टू एनीथिंग, इट शुड ओनली पॉइंट टू नल। Okay, yeah. And again that I was trying to rearrange the head as well. I was like put the head at the 2, so I can do that No, P no, of no, next no. is equal to head See, and again this suggestion is for everyone. In linked list, never move your head. Sorry. In linked list, never move your head. Always take it into some temporary variable like this and move your temp. So like he is moving with the head, he will be in trouble. कभी भी आप अगर हेड के साथ खेल रहे हो इधर उधर, फंसोगे आप कहीं ना कहीं आगे जाके। my head also. हाँ, My आपका head आपका अपना हेड भी खराब होगा और वो भी, दोनों बहुत खराब। लेकिन लिंक लिस्ट में यही है, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है यानी एक बार, लेकिन थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड होना चाहिए जब आप लिंक लिस्ट से कर रहे हो सॉल्व, अदरवाइज आप पॉइंटर्स में खो जाओगे। Yeah, I was about to see it on Google, but then I say that I will discuss it on live lecture. Then I will again try, and if no, then आई एम श्योर अब आपका हो जाना yeah, चाहिए। yeah. I am also feeling the same. तो Let's पेन try. एंड पेपर पे हमेशा जो है डेटा स्ट्रक्चर्स को पेन एंड पेपर पे सॉल्व करिए। दिस इज टू न्यू स्टूडेंट्स जो आज ज्वाइन कर रहा है, पूजा एंड एवरीबॉडी। आप ना पेन एंड पेपर एक नोटबुक बना लेना डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए, एंड उसमें सारे नोट्स बना के रखना, जो क्योंकि आपके जो इंटरव्यूज होते हैं वो Yeah. पेन एंड पेपर पे ही होते हैं, या ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही होते हैं, या Okay. नोटपैड पे आपको लिखवा दिया जाएगा। अभी थोड़ा लॉकडाउन है ना, तो नोटपैड वगैरह वर्चुअल इंटरव्यूज चल रहे हैं, तो वो ना बोर्ड पे लिखवाया जाता है। हाँ आपको वो ये नहीं देंगे, आईडी नहीं देंगे कि आपका हाँ भाई कंट्रोल स्पेस दबाया सब टाइप होके आ गया, वो नहीं होगा, है ना। हाँ तो आप हमेशा पेन एंड पेपर ले लीजिए और नोट्स बनाइए अच्छे से, जैसे स्कूल में नोट्स बनाते थे। और मैंने ये पहले भी सब लोगों को बता रखा है कि आप अगर आफ्टर 8 ईयर्स, अगर मैं देखिए मेरे को 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, मैंने अपने बारे में बताया नहीं, मेरा नाम यासिर है, सॉरी ये मेरे को बता देना चाहिए था, लेकिन एनीवेज माय नेम इज यासिर और मुझे 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। अगर मैं आज भी इंटरव्यू देने जाऊँ किसी भी कंपनी में, फर्स्ट क्वेश्चन जो वो मुझसे पूछेंगे वो यही पूछेंगे, लिंक लिस्ट का ये कर दो, वो कर दो, ट्री का ये कर दो, वो कर दो, स्टैक दे देंगे, क्यू दे देंगे,
कुछ प्रॉब्लम दे देंगे, यही प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं इंटरव्यूज में। और इवन सीटीओ लेवल पे, डायरेक्टर लेवल पे जिसके इंटरव्यूज मतलब मैंने भी लिए हैं और भी लोगों ने लिए हैं, वहां पर भी क्वेश्चंस यही होते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स पे। तो डेटा स्ट्रक्चर इज दी बैकबोन ऑफ योर एवरीथिंग। ये बैकबोन है आपका। आप भले ही गेम्स में काम करें, आप वहां पे भी डेटा स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं। और आपके कॉन्सेप्ट्स तभी क्लियर होंगे जब आपकी चीजें क्लियर है डेटा स्ट्रक्चर्स की। तो हमेशा ये डेटा स्ट्रक्चर्स रिवाइज कर पाए, इसलिए आप नोट्स बनाएं। पॉइंट मतलब ये है मेरा कहने का। जो और नोट्स थोड़ी अच्छी नोटबुक में बनाना, ऐसा नहीं कि थोड़े टाइम बाद वो खराब हो गई। ऐसा हो कि 10 साल चले, ऐसी नोटबुक बनाइए आप। अगर आप कंप्यूटर फील्ड में हैं तो हमेशा आपको यूज रहेगा। एंड द वन हु नोज अबाउट डेटा स्ट्रक्चर्स अचीव ग्रेट हाइट्स, जो मैंने देखा है। तो इसमें आप थोड़ा वर्क करना, नोटबुक बनाना, टॉपिक वाइज, एरे, स्टैक, लिंक लिस्ट, क्यू। तो ऐसे रहेगा। व्हाइट पेपर पे बनाना, ठीक है? लाइन वगैरह नहीं होनी चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। व्हाइट पेपर होना चाहिए आपका नोटबुक का। अगर किसी को पेजेस पसंद है तो पेजेस में बना लेना। पेजेस का फायदा ये होता है कि बीच में अच्छा जी कुछ ऐड कर दिया आपने तो पेज बीच में डाल दो, तो वो रहता है अच्छा। और और जो मिस्टेक्स कर रहे हो ना, उसे भी नोट्स में लिखो। रेड पेन से असाइन कर देना, ये मिस्टेक है। क्योंकि देखिए, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि मिस्टेक्स कर करके सारी मिस्टेक्स खत्म कर देना और इंटरव्यू में बिल्कुल सही कोड लिख कर आना। हमने देखिए सॉल्यूशन इतने सारे निकाले थे अभी n/2 वाली प्रॉब्लम के। फाइनली हमने एक O1 वाला सॉल्यूशन देख लिया। तो ये होता है हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। आई होप आई एम मेकिंग सेंस इज मानस एंड एवरीबॉडी हु हैव जॉइंड। हम और थोड़ी सी आप पेशेंस बना के रखिए। आपका ओवरऑल you will be on right track eventually. In a week's time, in 10 days, you will be on the right track for this. Okay. So anybody having any question? And otherwise we are stopping here. By next lecture I want you to solve few things. एक तो क्यू में आप कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करोगे, ये बताना है आपको नेक्स्ट लेक्चर में। और थोड़े से स्टैक के असाइनमेंट कंप्लीट करके आना, फिर देखते हैं थोड़ा क्या होता है ना। हाँ. यही है बस, बाकी नथिंग। इफ देयर इज एनी पॉइंट फ्रॉम योर साइड देन प्लीज लेट मी नो। And new people, if you have any problem, just I have given you my number. You can WhatsApp me, you can call me, or you can tell the Mayank also if you have any issues. I can discuss with Mayank. So देख लेंगे उसमें। So this is आप WhatsApp कर देना मुझे अगर मैं फोन नहीं उठाऊं तो। WhatsApp पे आई थिंक अच्छा चलता है आज। Okay. WhatsApp पे क्या यूज करता होगा? क्यू यूज करता होगा? स्टैक? स्टैक यूज करता है WhatsApp? तो कैसे मैसेजेस आप 10 लोगों ने भेजे तो यासिर की क्यू जो होगी उस पर क्या जा रहा होगा? मैंने वैसे बता ही दिया, क्यू ही क्यों होगी है ना। सर, जो फर्स्ट मैसेज सेंड होगा वही आएगा। वही आएगा ना यार। तो ऐसे ही चलते हैं। यस सर। तो सब ऑलमोस्ट डेटा स्ट्रक्चर्स यूज कर रहे होते हैं ये सब व्हाट्सएप वगैरह भी। आप इनके सिस्टम डिजाइन के कभी टाइम मिले, अगर आप देखो कि कैसे डिजाइन हुआ हुआ है, आप रियलाइज करोगे अरे ये तो वही यूज कर रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं। तो ऐसा ही है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज टाइम। हम ट्यूसडे को वी विल मीट ऑन ट्यूसडे। Yes, sir. ओके सर, ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर। बाय सर, गुड नाइट एवरीवन। Okay. Bye bye.